Here again for another CPD seminar. जैसा डबल डिपार्टमेंट like 2017, since 2017, we've been arranging continuous CPD seminars and webinars. Even in pandemic, we have arranged numerous webinars, and you can see those webinars on our YouTube page. Link will be shared on the post. So all the seminars, workshops, even the lectures by our prominent faculty members and professors is uploaded on our YouTube page. The proceedings of this seminar will also be shared on our Facebook page. Currently we are organizing seminar on career in health and safety. The health and safety issue is very critical when it comes to the engineering domain, and since we are teaching engineering fraternity, not just engineering fraternity but also the computer science and the humanities and the management sciences domain, the health and safety domain is very important and critical. So as a professional we must ensure what sort of issues that will be encompassing during our professional careers, and not we are just focusing on the job perspective that we've been engaging in the academic cycle, but in today's scenario health and safety has emerged as a very vast and very emerging field. The scope in this field is very enormous, and since for that purpose we have invited Engineer Bilal. Engineer Bilal is a certified OSHA presenter, health and safety auditor as well. He will be providing us with insight in this domain, and also he will also give us the introduction of his own. Mr. Bilal, Engineer Bilal, please. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Haris Saab, for a nice introduction. Welcome all to this session on career in health and safety. So first of all, I will start with my own introduction, my company introduction. I am representing Innovo Global Group of companies, and the leading company is Innovo USA Training and Site Safety Solutions. So I will start just with a brief introduction of the company and my own self, and then we will start with your introduction as well, so that we can connect with each other, and then we move on to the formal presentation. So let's start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, who are we? We are occupational safety and health specialists. And we are providing training, professional and auditing and advisory services. There are actually different credentials, or we can say prestigious boards in the US, in the UK and other parts of the world who help professionals in providing the occupational health and safety credentials or certifications. And these certifications help the professionals as the value addition in their career as well, and as the full-time career opportunity as well. So talking about those opportunities, these are our focus areas. First of all, Board of Certified Safety Professionals, USA. It is known as the leading board in the occupational health and safety certifications. So we are providing the services of Board of CSP USA, CSP, ASP, CHST, CIT. They are their certifications. We will talk about them later in the coming slides. Then OSHA. OSHA is Occupational Safety and Health Administration USA. This is the federal organization in the USA overall regulating the occupational health and safety in the US market. Then there are a few other certifications, like from National Fire Protection Association and the Electrical Safety Standards 70E. So we will talk about them in the coming slides. But these are our main focus areas. And then there are some other areas in the health and safety, like
fall protection, environmental management, we can say hazardous waste management. So there are so many areas in occupational health and safety in which we provide the training and compliance. We are located in these three regions. US is our corp office or head office based in New Jersey, New York. UK is our another regional office, and Pakistan is another regional office. This is our management team. Mr. Imran Iqbal is our Vice President and CEO based in New Jersey, USA. He is a certified professional OSHA outreach trainer. I am working in this region as Managing Director and Chief Operating Officer. And these are our strategic directors. Idris Saab, Rizwan Haider Saab based in UK, and Dr. Umair Saab. And Dr. Umair Saab working in behavior safety. Just a brief introduction of our leadership team. Mr. Imran Iqbal, he is, as I have said, he is based in New Jersey for the last 25 years. And he has all his experience and education from the US market, and he's leading us overall in the occupational health and safety. And my own introduction. From my own introduction, I will take your introduction as well, and we try to make this session a sort of combination of the formal and informal one, right? So थोड़ा सा हमने इंग्लिश से स्टार्ट इसलिए किया कि थोड़ा सा हम अपना एक जो फॉर्मल पैटर्न है उससे स्टार्ट ज़रूर करें, बट मकसद इस सेशन का ये है कि वी कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है? और उसमें हम थोड़ा सा पहले एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर इंशाल्लाह बहुत हमारी ये इफ़ेक्टिव एक डिस्कशन सेशन है जिसमें आई होप इंशाल्लाह बहुत आप लोग इन्जॉय भी करेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी है जो हम डिस्कस भी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल माय ओन इंट्रोडक्शन. आई एम ख्वाजा बिलाल जिलानी और राइट नाउ आपने मेरी जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो देख ही ली है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल फ्रॉम बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स यूएसए. जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से सबसे जो दुनिया के नामवर इदारे हैं और बड़े इदारे हैं उनमें से एक है. I am also certified electrical safety compliance professional. In fact, Pakistan's first certified electrical safety compliance professional from the biggest fire prevention board, that's National Fire Protection Association USA. I'm lead auditor ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System. और इसके साथ साथ इस वक्त मैं एज अ मेंटोर काम कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स यूएसए के साथ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन फ्रांस के साथ, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़. तो ये मेरी कुछ मेंटोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो कि साथ साथ चल रही हैं. थोड़ा सा मैं और अगर इसमें पीछे जाऊँ तो जो इंट्रोडक्शन है मेरा वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. वो इस तरह से है कि मैंने अपना करियर 2007 में स्टार्ट किया विद बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स. Later on, I did my masters in electrical engineering from UT लाहौर. तो पाकिस्तान का जो आपका नेशनल डिफेंस का इदारा है सुपारको का आप सबने नाम सुना होगा, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. तो मेरा जो इनिशियल का 10 साल का कैरियर था दैट वाज कोर टेक्निकल कैरियर, जिसमें आप समझ लें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद द सैटेलाइट स्पेशली. और पाकिस्तान का जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है पाकसैट मनार, इसकी भी टीम के साथ मैं 2 साल चाइना रहा. ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन डेवलप और लॉन्च किया वहाँ से. मूविंग ऑन तकरीबन 10 साल की सर्विस के बाद एंड इन दैट पीरियड आई डिड माई ग्रेजुएट इन प्रोफेशनल सैटेलाइट ट्रेनिंग एज वेल. देन कमिंग बैक आई स्विच टू द कॉर्पोरेट सेक्टर इन 2016. आई जॉइंड एंग्रो एंड आई वर्क विद देम एज साइट लीड ऑन अ विंड पावर प्लांट. और उस अरसे में मुझे मौका मिला थोड़ा सा हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर भी काम करने का टेक्निकल एरियाज़ के साथ. So I worked as lead HEC and lead of the technical plant with IFC and World Bank on the IFC standards. इसके साथ साथ टेक्निकल एरियाज़ में मेरी ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस अरसे में सर्टिफिकेशंस हुई, जनरल इलेक्ट्रिक चाइना के साथ सर्टिफिकेशंस हुई. तो फिर एक टेक्निकल और HSC कैरियर का एक मर्जर था फिर जिसको मैंने कन्वर्ट किया लेटर ऑन ये अपने बिजनेस के वेंचर में. सो दिस वाज माय ओन
इनोवा वॉज माई ओन इनिशिएटिव, द ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी। और फिर इस 2 साल के अरसे में जितनी मैंने आपसे जिक्र किया सर्टिफिकेशंस का और मेंटोरिंग के जर्नी का, ये स्टार्ट हुआ। सो जो पॉइंट मैं यहाँ पे रेस करना चाह रहा हूँ अपने इंट्रोडक्शन के साथ, वो ये है कि आपके लिए अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी अच्छी जगह पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वक्त के साथ साथ अपनी कंटिन्यूस डेवलपमेंट को ना रोकें, अपनी स्किल डेवलपमेंट को ना रोकें। जब आप अपनी स्किल डेवलपमेंट को नहीं रोकते तो फिर आपको जॉब सिक्योरिटी की भी परवाह नहीं होती, आपको अपॉर्चुनिटीज़ की भी परवाह नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुद ब खुद आपके लिए खुलते चले जाते हैं। ये एक मैसेज है जिसे मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये खुद मैंने सीखा है अपने करियर के अंदर। सो मेरे पास इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि ड्यू टू दिस सर्टिफिकेशन मेरे पास इस वक्त भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, बट आई डोंट वांट टू स्विच टू देम, आई वांट टू कंटिन्यू विद माय बिजनेस। ठीक है, तो ये सफ़र आपका तब होता है जब आप अपने स्किल डेवलपमेंट के सफ़र को नहीं रोकते। तो ये एक मैसेज है जो मैं इन द स्टार्ट देना चाहता हूँ। और मैं ब्रीफली जानना चाहूँगा आपका इंट्रोडक्शन, ताकि थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हो कि हमारी जो है वो ऑडियंस किस लेवल पे है। चूँकि हमारे पास फ्रंट रो खाली है, अगर कुछ साथी आगे भी आ सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, हम ज़रा कनेक्टेड रहेंगे तो बेहतर तरीके से डिस्कशन कर सकेंगे। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें, बट आई वुड से कि जितना हम थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसेस को भी हमने मेंटेन करना है, उस चीज़ को देखते हुए, तो उसका ख्याल रखते हुए अगर हम एक आध पार्टिसिपेंट आगे भी आ सकते हैं तो ज़रूर आ जाएँ। मूविंग ऑन, हम सर आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ब्रीफली योर नेम, कि आप इस वक्त कर रहे हैं, स्टूडेंट रोल में हैं, फ्रेश कैरियर में हैं, एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मुझे उसका आइडिया दे दें। और कोई पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन जो आपकी इस सेशन से है, ये एक आप समझ लें कि ऑप्शनल कमेंट है जो आप दे सकते हैं, तो ये आप दें ताकि मुझे थोड़ा सा, चूँकि ऑडियंस हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, आई गेट द मैसेज फ्रॉम माई ऑडियंस, और फिर उसके साथ जो है वी कैन मूव ऑन। सर आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं इम्तियाज़ हुसैन एंड आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट राइट सर। और आई एम इन द टीचिंग जो शोभा है उसमें लास्ट 17 years हो गए ऑलमोस्ट। एंड आई वुड लाइक टू लर्न अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी है उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा डिस्कस करें। श्योर सर, श्योर, थैंक यू सो मच। इंजीनियरिंग मोहम्मद उवैस, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे। It has been like around 5 years in the SSF University, overall an experience of around 9 years. राइट। And obviously जैसे सब मेरा भी यहाँ पे इसी सेशन की और मेरी एक्सपेक्टेशन या जो मैं इसमें लर्न करना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जो सेफ्टी वाले इश्यूज़ हैं, जी सर। नॉट जस्ट फॉर द इंडस्ट्री एंड मे बी जब हमारा जो अपना इन्वायरमेंट है उसमें हम किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं और किस तरीके से जो इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हमारा सेटअप इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तो उनको हम किस तरीके से अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट सर, प्लीज सर। So my name is Mohammed Sabi and I am currently working as a service engineer at Nazarene Company. सर्विस इंजीनियर सर किस कंपनी से? Nazarene Company. ओके। So what we basically do is we basically install German and Italian manufactured textile machineries. राइट राइट, वेरी गुड। जी सर। I am Akshay Kumar and I am a student at DHS Nepal University in 6th semester. 6th सेमेस्टर में आप किस डिपार्टमेंट में? Computer science. कंप्यूटर साइंस। चलो, वेरी गुड सर। I am engineer M. Asadullah Siddiqui. I am an assistant professor here at DHS Nepal University's Department of Electrical Engineering. I have experience of academia and the industry spanning over 11-12 years. माशाल्लाह। And I did my MSc from KTH Royal Institute of Technology in Sweden in electrical power engineering, and I teach courses related to electrical power engineering. So from this session I am also looking for aspects related to electrical safety राइट and safety at the workplace. राइट, वेरी गुड सर, थैंक यू। जी सर। Assalamualaikum. My name is Asad Ali and I am working as a senior lecturer at the University Department of Electrical Engineering. I have been here since 5 years and my total experience is of around 8 years, including the technical experience, serving as assistant manager
that's a very good point. जी sir. Myself, Fayazudin, recently working in a industrial engineering maintenance department. I have done different shutdown in UAE, Qatar, and even Pakistan. Okay. And the main aspect of this training to further growth in the health and safety area. Right. So you're working in DESCOM? Yes. Okay. In which role? Sorry? In which Maintenance role? department. Maintenance department. Mechanical, electrical, I have a graduate in petroleum engineering. petroleum engineering. Okay. Very good. जी sir. I am Mohammed. I recently completed my bachelor's in electrical engineering, and the purpose to attend this session is to know more about careers in electrical engineering. Okay. Inshallah. जी sir. Okay. Very good. जी sir. My name is Daniel and I am from marketing department and working at DHS Super University. Okay. Very good. जी sir. हारिस साहब. मेरा नाम इंजीनियर हारिस है, currently working as faculty member in electrical department. My personal interest is in this particular domain because I usually teach professional ethics, and within that particular domain subject, I usually encompass social and Right. Right. That's why I'm looking forward towards this session. Very good sir. Madam. I'm also Asim. I'm currently working as a lab engineer in electrical engineering. Okay. कितना experience हो गया overall आपका? 3 years ago. 3 years हो गए. Very good. माशाल्लाह. अच्छा. सर ये बार बार skip हो जाता है slide show. IT specialist आ रहा है सर. अच्छा. चलें सर. बड़ा अच्छा आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया माशाल्लाह. एक अच्छा ब्लेंड ऑफ प्रोफेशनल्स है, और थोड़ा सा मुझे एक ये फ्लेवर लेके बड़ी खुशी हुई कि एक मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में इंटरेस्टेड है. तो मैं उस पर चलता हूँ ज़रा आगे. A short glimpse of our clientele in the last 2 years, and I continue the discussion of my journey. Electrical safety is actually my specialization area, as I have said. और जिस वक्त मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का, उसमें मेरी एक बड़ी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन थी. वो ये थी कि अभी मैं डॉक्टर हारिस साहब से बात भी कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी शोबे में देख लें, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, आपको PhDs भी बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स मिलेंगे. मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में ना होने के बराबर हैं एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में, और जो हैं भी उनका लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए या जो बाकी शोबों के अंदर है. एक पहली चीज़ तो ये थी. और फिर इसके अंदर भी वन ऑफ माई ऑब्जर्वेशन वॉज कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक एरिया. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एक आप समझ लें कि इसकी क्रिटिकलिटी ये है कि इसको वो बंदा कर सकता है बेहतर तरीके से जिसका अपना इलेक्ट्रिकल हैंड्स ऑन हो, बाय एजुकेशन या बाय एक्सपीरियंस. जैसे लोग पावर प्लांट्स पे काम करते हैं, बाय एजुकेशन नहीं होता उनका बैकग्राउंड, लेकिन पावर प्लांट्स पे काम करते हैं तो दे गेट द गुड फ्लेवर. तो या बाय एजुकेशन या बाय एक्सपीरियंस या बाय बोथ ऑफ देम, अगर उनका एक अच्छा हैंड्स ऑन हो तो दे गेट द आइडिया. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से जो दुनिया का सबसे कमांडिंग स्टैंडर्ड है वो है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का 70E. मैं भी उसका इंट्रोडक्शन भी रन करूँगा कुछ देर तक. सो उसके ऊपर मैंने इनिशियली रिसर्च स्टार्ट की, काम स्टार्ट किया, और जिस वक्त मैंने अपने इस वेंचर को स्टार्ट किया, मैंने पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ इस रिसर्च को स्टार्ट किया. एंड आई स्टार्टेड विद डेस्कॉन. एक्चुअली डेस्कॉन ने अपना विंड पावर प्लांट का जितना ONM था उन तमाम को 70E पे ट्रेन करवाया. उसके बाद अलबारी इंजीनियरिंग ने ट्रेन करवाया, जनरल इलेक्ट्रिक ने ट्रेन करवाया. चूँकि मैं खुद विंड पावर सेक्टर से था तो उनके साथ इनिशियली ज़्यादा काम किया मैंने. Moving on, I continued my research, and then I became Pakistan's first professional who's certified in electrical safety as certified electrical safety compliance professional. And at the moment, I am the only person in Pakistan जो same time पे certified safety professional भी है और certified electrical safety compliance professional भी है. So ये जर्नी जो है वो चलता रहा, और इसमें के इलेक्ट्रिक ने जो है वो इस साल के स्टार्ट में अपने सेटअप पे जितने उनके असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर्स हैं, तकरीबन आप समझ लें तो 100 से ज़्यादा ऑफिसर्स को जो है वो ट्रेन किया ये 70E के स्टैंडर्ड पे. तो आप में से जितने लोग भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे इंटरेस्टेड हैं, 70E इज़ बेसिकली द राइट रिजॉर्ट, जिसमें आप उसमें अपनी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आप उसकी सर्टिफिकेशन लेवल तक भी जा सकते हैं. ठीक है.
सो यहाँ पे हमने इस सेशन में तो मल्टीपल फ्लेवर्स लेने हैं चीज़ों के। थोड़ा सा हमें इशू आ रहा है। ओके, सो दीज आर आवर क्लाइंट्स जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में भी हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी हैं। सो जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ एरियाज में हम सर्विसेज दे रहे हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सर्व आवर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज and various international accreditations. So we move on to the main presentation. Okay, so this is our main discussion, career in health and safety. जिसमें इनिशियली थोड़ा सा जो हमने पहले सेशंस किए हैं उनका हम ग्लिम्स लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। सेफ्टी कैरियर, सेफ्टी को अगर हम एज अ कैरियर लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि या आप सेफ्टी को एज अ फुल टाइम कैरियर ले लें या आप अपनी एग्जिस्टिंग कैरियर के साथ एज वैल्यू ऐड करें। क्योंकि हम सबको पता है कि इस वक्त जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, ठीक है। सो आई बिलीव कि दिस इज वन ऑफ द स्किल जो हर बंदे के पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम सब समझते हैं कि इस वक्त जो है वो लेट्स टॉक अबाउट एज एन एग्जांपल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट सूट, ठीक है। आपका ऑफिस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी शोबे में हैं, यू शुड नो हाउ टू यूज़ दैम, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ तक नहीं रही, हर बंदे को एक बेसिक लेवल पे जो है फोटो एडिटिंग भी आनी चाहिए, हर बंदे को एक बेसिक लेवल पे वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए। तो ये सारी ऐसी स्किल्स होती जा रही हैं जो हर बंदे के लिए ज़रूरी हैं। फिर आपकी अभी ये रिसेंट जब पेंडेमिक का सिनेरियो आया, आपकी ऑनलाइन वीडियो मीटिंग्स, फैसिलिटेशंस, ये स्किल्स आपकी ज़रूरी होगी। सर एक थोड़ी थोड़ी बात और ना स्विच हो जाता है ये स्क्रीन शॉट। तो ये वाली जो चीज़ है ये इस तरह से, मतलब द पॉइंट इज स्किल की आपको रेगुलरली ज़रूरत है। सो इन द सेम वे व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई हैव सीन कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो इस वक्त हर बंदे के लिए ज़रूरी है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल रोल में, मार्केटिंग के रोल में, किसी भी रोल में कहीं भी जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि कॉर्पोरेट के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है कि सेफ्टी फर्स्ट। दो टर्म्स बड़ी मशहूर हैं, एक है सेफ्टी फर्स्ट कि दिस इज ऑलवेज द टॉप प्रायोरिटी, वन थिंग, और दूसरी ये बात हर जगह पे की जाती है कि सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 सेफ्टी ऑफिसर्स या स्पेशलाइज्ड लोग रखे हुए हैं, सिर्फ उन्होंने ही सेफ्टी के मामलों को देखना है। इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो आपको स्टैंडर्ड्स के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर गाइडलाइन दे, आपको जो है वो प्रोसीजर्स बना के दे, कंप्लाइंस के लिए आप लोगों को ट्रेन करे, अवेयर करे। बट ये हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ्टी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझे और उसके साथ साथ उसको अप्लाई भी करे, ठीक है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि वी एड इट एज द वैल्यू विद आवर एग्जिस्टिंग कैरियर, ठीक है। जैसे कल ही जो है वो हमारी एक बहुत सीनियर प्रोफेशनल के साथ हमारी जो है वो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही थी, यूएस में ही मीटिंग हो रही थी, ऑनलाइन मीटिंग उनके साथ हो रही थी। तो उसमें उन्होंने बड़ी क्रिटिकल बात की। जैसे मैं ये सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, कहते हैं हमारे पास रिज्यूमे आते हैं मिसाल के तौर पे एक पोजीशन के लिए जो कि इलेक्ट्रिकल की पोजीशन है, राइट। और इस इलेक्ट्रिकल की पोजीशन के लिए हमारे पास 100 रिज्यूमे आते हैं, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल के 3 रिज्यूमे मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल भी हैं। तो कह रहे हैं मैं टेक्निकली सबसे पहले उन 3 लोगों के रिज्यूमे को देखूंगा जो कि सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल है, मैं बाकी 97 को नहीं देखूंगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल की भी सारी कॉम्पिटेंस को पूरा कर रहे हैं और वो सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल भी हैं। तो उस जॉब रोल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो वो पूरा कर रहे हैं, बट वो एक एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंस भी साथ लेके आ रहे हैं। तो वो एक बात कर रहे थे कि अगर उन 3 में से कोई मेरे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा तो फिर मैं बाकी 97 की तरफ जाऊंगा। So this is the criteria which is followed in the US or in the developed countries and in Pakistan as well, in the leading companies. ठीक है सर, इशू नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो that's why हमें अपने आप को भी एज अ प्रोडक्ट देखना है कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं वो हम अपने साथ ऐड करें। एक तो ये इसमें पैरामीटर है जो कि मैं चाहूँगा कि इस सेशन से आप लेने की कोशिश करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ वक्त के साथ साथ सैचुरेट भी हो जाती हैं बातों का।
ये प्रॉब्लम हो रही है बार बार। ये अगर इसको मैं पोर्ट में जी HDMI पोर्ट है, उसका ये कनेक्टर भी है साथ, अगर आप ये ट्राई कर सकते हैं ये करें। ठीक है, दूसरा जो मैं चाहूँगा कि एक आप जो मेथडोलॉजी अपनी रखें इस सेशन के अंदर, वो ये है कि किसी भी वक्त अगर हमें अपनी पर्टिकुलर फील्ड में एक सैचुरेशन नज़र आती है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ ऑलवेज द एरिया जिसमें आपके पास रूम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा है। और जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, तो एज आई हैव सेड कि इसमें तो बहुत ज़्यादा रूम है, पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमें मार्केट की डायनामिक्स को अपने जहन में रखना चाहिए कि आपका जो मिडिल ईस्ट सेक्टर है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। हमने देखा कि कितने लोग यहाँ से सऊदीया गए, दुबई गए, अबू धाबी गए, कितने वहाँ प्रोजेक्ट हुए, लेकिन एक सर्टन सैचुरेशन टाइम आ चुका है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, तो बड़ी तेज़ी से लोग वापस आ रहे हैं। और हम चूँकि मार्केट में बैठे हुए हैं, हमारी एक बड़ी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है मार्केट की। सो मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जो आने वाले 10 साल हैं ख़ासतौर पे, वो पाकिस्तान के हैं। इतनी तेज़ी से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इतनी तेज़ी से यहाँ पे काम आना है। एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि जितनी तेज़ी से यहाँ पे काम आना है, उतनी तेज़ी से हम अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे, ख़ास तौर पे इन एरियाज़ के अंदर। ठीक है, कुछ हमारे जो IT के एरियाज़ हैं वो बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, फ्रीलांसिंग के एरियाज़ बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू अलर्ट कि ये एक एरिया है जिसमें हमारी जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उनकी भी स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, और आने वाले वक्त में जो स्किल्स चाहिए होंगी, जिन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, जिन कैपेबिलिटीज़ के लोग चाहिए होंगे, शायद उसकी कमी हो जाए। तो वहाँ क्या होगा कि अगर हमारे पास वो स्किल और कॉम्पिटेंस नहीं होगी, तो फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ को बाहर से लोग आके अवेल करेंगे, जैसे सऊदीया में या मिडिल ईस्ट में लोगों ने अवेल किया अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग जो मैं चाहूँगा कि आप अपने ध्यान में रखें। राइट, सो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए जो बड़ा इस वक्त ट्रेंड मार्केट में सेफ्टी का फॉलो होता है, वो कुछ UK क्वालिफिकेशंस का होता है, कुछ US क्वालिफिकेशंस का होता है। ठीक है, तो उनकी थोड़ी सी बात करेंगे, उनको कंपेयर भी करेंगे, फिर हम खास तौर पे ये देखेंगे ठीक है, ऐसे ही चल रहे हैं। फिर हम खास तौर पे ये देखेंगे कि हाउ वी कैन ऐड वैल्यू इन द यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा हम अपनी प्रोफाइल के हवाले से बात करेंगे कि व्हाट वी कैन डू इन द यूनिवर्सिटीज़, ताकि जो आपके एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं उनको आइडिया हो सके, एंड व्हाट पॉसिबली वी कैन डू विद DHA SOFA। ठीक है, चूँकि हमारे पास यहाँ टीचर्स भी बैठे हुए हैं, तो कुछ सजेशन हमारी तरफ से कि हम अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ और आने वाले जो वक्त है और आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोग जिस तरह बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं DHA SOFA के साथ, तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को किन स्ट्रीम्स के ज़रिए आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कुछ इसी तरह के सेशन हम रेगुलरली करते रहे हैं। वी डिड दैट विद UCP लाहौर, विद ब्यूटम्स कोयटा। ठीक है, सो हम रिमोट एरियाज़ के अंदर भी करते रहते हैं इस चीज़ को। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के साथ हमने रिसेंटली इस चीज़ को किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ एंड सेफ्टी है क्या? हम ये बार बार 3 लफ्ज़ हम बहुत सुनते हैं, बल्कि 4 लफ्ज़ सुनते हैं, सेफ्टी, हेल्थ, क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या फ़र्क है सर चारों में, और चारों हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स सेफ्टी? एनीवन, कोई भी सर आइडिया जो आपके दिमाग में हो, सेफ्टी क्या है आपके ख्याल में? सेफ्टी मेरे ख्याल से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके इंसानी जान और इक्विपमेंट
दोनों एस्पेक्ट्स, ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल, इनको एक खास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ताकि कोई कैटास्ट्रोफी नहीं हो, कोई डैमेज नहीं हो. दैट इज माय कॉन्सेप्ट. बिल्कुल ऐसे. सो प्रायोरिटी हमारे लिए क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सर की बात सही है, दोनों चीज़ें इसमें हैं. आपके एसेट्स भी हैं और आपकी ह्यूमन लाइफ भी है. प्रायोरिटी इज ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ, ठीक है. अगर आपका कहीं पे किसी किस्म का कोई जो है वो इमरजेंसी सिनेरियो होता है, कोई कैटास्ट्रॉफी होती है और बिजनेस आपका शट डाउन हो जाता है, तो बिजनेस कंटिन्यूटी इन दैट सिनेरियो इज द लास्ट प्रायोरिटी. ठीक है, पहले आप अपनी ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन एसेट को सेव करेंगे, फिर अपने दूसरे एसेट्स को सेव करेंगे, फिर आप सारी चीज़ों को रिकवर करेंगे, रिस्टोर करेंगे और आखिर में आप बिजनेस कंटिन्यूटी करेंगे इमरजेंसी सिनेरियोज में. सो एग्जैक्टली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी इज हिफाजत. ठीक है, वही जो हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट है हिफाजत का. और उस हिफाजत के कॉन्सेप्ट में हैज़र्ड एंड रिस्क, दैट इज बेसिकली द कोर कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हैज़र्ड? हैज़र्ड इज एनीथिंग, एनी सोर्स, एनी स्टफ which has the potential to cause harm. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ AC इंस्टॉल्ड है. इस AC के साथ एक वायर का चैनल जा रहा है. वो वायर का चैनल बीच में से कहीं पे ब्रेक हो जाता है. ठीक है. तो ये जो आपकी डैमेज वायर है, दिस डैमेज वायर इज कॉल्ड हैज़र्ड. ठीक है. और इसका जो पॉसिबल आउटकम है, दैट इज कॉल्ड रिस्क. ठीक है. अब इसका पॉसिबल आउटकम क्या है कि आपको इससे शॉक लग सकता है. ठीक है. इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है, इसकी वजह से आग लग सकती है. देयर आर मल्टीपल पॉसिबल कंसीक्वेंस ड्यू टू दैट डैमेज वायर. तो वो जो आपकी वायर है, आपकी जो सोर्स है, दैट इज एक्चुअली द हैज़र्ड. और जो उसका आउटकम है, दैट इज कॉल्ड द रिस्क जनरली. ठीक है. इसी तरह लेट सपोज इस हॉल के अंदर इस वक्त कोई सांप आ जाए, कोई स्नेक आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो दैट स्नेक इटसेल्फ इज हैज़र्ड. or that snake can bite any one of us. Poison can penetrate inside our body, so that is the associated risk. ठीक है. तो ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है रिस्क का. लेकिन इसके साथ साथ बेसिकली मकसद क्या होता है आपका सेफ्टी के अंदर के, सबसे पहले तो आप करें हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन डिटेल. ठीक है. अब हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन डिटेल कैसे हो सकती है? जितनी आपकी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आप हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि वी हैव द 3 levels ऑफ हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन. वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ कॉमन नॉलेज, जो कि हर बंदा कर सकता है. ये हमने तार या सांप की बात की, ये कॉमन नॉलेज की चीज़ें हैं. देन वी हैव द इंडस्ट्रियल नॉलेज. विद सम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई मोर हैज़र्ड्स. एंड देन वी हैव द एक्सपर्ट लेवल, जिसमें वो हाईएस्ट नंबर ऑफ हैज़र्ड्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये हम बड़ा सिंपल करके इसको डिस्कस कर रहे हैं, बट द कोर कॉन्सेप्ट इज हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एवरीवेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एवरी जॉब, इन एवरीथिंग, इन एनी एक्टिविटी. एंड देन क्वांटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ दैट हैज़र्ड, कि वो हैज़र्ड हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है. तो वो जो उसके नुकसान पहुंचाने की हम क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड रिस्क असेसमेंट. ठीक है. रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क इवैल्यूएशन, तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. हम सिर्फ उसकी जो कोर आइडियोलॉजी है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए आपका सेफ्टी का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट. ये हम मैक्सिमम करें अपनी तमाम जॉब्स में, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ में, अपनी तमाम चीज़ों में, ताकि हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, हमें किसी किस्म की इंजरी ना हो. हमारी वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ लफ्ज़ ऑक्यूपेशनल आ जाता है, दैट इज़ बेसिकली आवर फोकस, तो वहाँ हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, बिकॉज वर्क प्लेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और जनरली हैज़र्ड्स भी ज़्यादा वर्क प्लेस पे होते हैं. आपके पावर प्लांट्स चल रहे हैं, आपका ऑयल एंड गैस है, आपके केमिकल्स हैं, आपके इलेक्ट्रिकल सेटअप्स हैं. लोग 200, 250 फीट्स की जो है वो बुलंदी पे काम कर रहे हैं, जैसे हम करते रहे विंड इंडस्ट्री में. तो देयर आर अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हैज़र्ड्स, जिसकी वजह से मेजर इंजरी भी हो सकती है, फेटेलिटी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है. सो दैट्स व्हाई इट्स जस्ट नॉट अ कॉमन नॉलेज, इज अ प्रॉपर एक्सपर्ट फील्ड.
इट्स अ प्रॉपर एक्सपर्टीज। ये हम बिल्कुल उसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ कमांड ऑन दैट। तो एक एलिमेंट है आपका सेफ्टी, दूसरा एलिमेंट है आपका हेल्थ। हेल्थ इज ऑल अबाउट आवर सेहत, वही जो हम हेल्थ नॉर्मली कहते हैं कि कोई चीज़ है, कोई छोटा सा पार्टिकल है, वो हमारी जो है वो रिस्पायरेटरी पार्ट से या हमारे ब्रीथिंग पार्ट से हमारे लंग्स में जा रहा है, हमारे किडनी में जा रहा है। कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। लेट्स सपोज एस्बेस्टॉस है, ठीक है, सिविल स्ट्रक्चर्स में एक मटेरियल यूज होता है, तो उसका जो लेटेंसी पीरियड है वो 10 to 15 ईयर्स है। आप एक्सपोज हो जाते हैं और आपको 15 साल बाद उसकी वजह से कैंसर होता है और आपको पता चलता है कि ये चीज़ आपके अंदर चली गई है। रेडिएशंस आपको इफेक्ट करती हैं, नॉइज आपको इफेक्ट करती है। तो इस तरह से वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको इम्पेक्ट कर रही होती हैं। कुछ शॉर्ट टर्म इम्पेक्ट कर रही होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट कर रही होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस, इन तमाम चीज़ों की कमांड, ये किस एरिया में आती है जो कि सेफ्टी के साथ इंटीग्रेटेड ही है, ये आती है आपकी हेल्थ के एरिया, ठीक है। और हेल्थ के एरिया में ही फिर आपका एक वर्ड इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल हाइजीन, ठीक है। शायद हम सब जो है वो जब लफ्ज़ हाइजीन हमारे सामने आता है तो शायद हम खाली इसका ये मतलब लें कि हाइजीन का मतलब है हाथ वगैरह साफ रखना, खाने पीने में एहतियात करना, यही बात आती है ना हाइजीन से जहन में। इंडस्ट्रियल हाइजीन इज नॉट ओनली दैट, आपके सारे हेल्थ इम्पैक्ट्स, आपकी इवन मोटिवेशन, आपके बेनिफिट्स, आपका जो है वो फिजिकल मूवमेंट्स, आपकी अर्गोनॉमिक्स, बहुत वाइडर फील्ड है जो इंडस्ट्रियल हाइजीन है। तो हम जो हाइजीन का मतलब लेते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। जो एक्चुअल आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल हाइजीन का, वो बहुत ज़्यादा वाइड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो वन थिंग इज हाइजीन एंड हेल्थ, देन द नेक्स्ट एरिया इज इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस, ठीक है, जिसमें हमने अपने जो है वो देखना है कि हम अपनी एयर को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द मौजूद वाटर रिजर्वायर्स को और उसमें मौजूद एक्वेटिक लाइफ को अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के ज़रिए कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कौन सी एसोसिएटेड डिजीज़ेज हैं जो इसकी वजह से हैं, ठीक है। तो ये जो सारे हम इम्पैक्ट्स देखते हैं ये आपके आते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। और चौथा एरिया है आपका क्वालिटी का, जो कि सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंट से बिल्कुल अब एक अलग फील्ड बन गई है। और मेरा ख्याल है कि उसका तो सबको आइडिया है कि आप अपने प्रोसीजर्स के अंदर और अपने काम के अंदर जो भी इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको जब बेस्ट तरीके से फॉलो करते हैं तो दे आर कॉल्ड द क्वालिटी प्रैक्टिसेस। उसमें कुछ आपके जापानीज कॉन्सेप्ट भी हैं, लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके 6 सिग्मा के कॉन्सेप्ट्स हैं, आईएसओ का स्टैंडर्ड है। कौन सा सर आईएसओ का स्टैंडर्ड क्वालिटी का? 9001, इट्स कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। तो फिर ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसकी हमें नॉलेज हर बंदे को होनी चाहिए कि सेफ्टी क्या चीज़ है, सेफ्टी की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, हेल्थ क्या है, हेल्थ की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और क्वालिटी क्या है, क्वालिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। सो ये चारों जो हैं वो अलग अलग आप समझ लें कि बड़ी मदर फील्ड्स हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो ज़्यादा फोकस्ड है सेफ्टी के अंदर, ठीक है। और सेफ्टी के अंदर भी जब हम आते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप तमाम एरियाज को मास्टर कर सकें सेफ्टी, ठीक है। आप सेफ्टी में भी मैक्सिमम या आपकी सिस्टम लेवल पे कंप्लाइंस होती है या आपकी 1 से 2 चीज़ों के अंदर एक्सपर्टीज होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वुड से कि मैं कहूँगा कि मेरी जो है वो एक्सपर्टीज़ है सिस्टम लेवल कंप्लाइंस एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है। कोई बंदा केमिकल इंजीनियर है, ऑयल एंड गैस प्लांट पे काम कर रहा होता है तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है प्रोसेस सेफ्टी। तो प्रोसेस सेफ्टी इज अनदर एक्सपर्टीज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी इज अनदर एक्सपर्टीज, हेल्थ एस्पेक्ट्स इज अनदर एक्सपर्टीज। तो एक अर्गोनॉमिक्स है जिसमें हमारे जो ये फिजिकल मूवमेंट्स हैं, पोस्चर्स हैं, ये एक अलग एक्सपर्टीज है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो 25 से 30 शोबे मिलेंगे सेफ्टी के अंदर, जिसके अंदर आप फर्दर जो है वो अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज के साथ। बस फिर ऐसे ही चलने देते हैं, नहीं होगा लैपटॉप चेंज करते हैं,
कर दें, कर दो। इसको स्किप करो, मैं फोल्डर आपको बता देता हूँ, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। ये वाला जो फोल्डर है, ये DSU का फोल्डर कर दें। चलिए सर, हम डिस्कशन अपनी कंटिन्यू रखते हैं। सो ये है बेसिकली आपके 3-4 एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो हमारा आज का जो ज़्यादा सेशन है वो फोकस होगा सेफ्टी के ऊपर, ठीक है। हम सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं आज। अच्छा, मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट डिस्कशन हम थोड़ी सी कर लेते हैं आपकी सेफ्टी के अंदर। सेफ्टी की फील्ड के अंदर भी हमने बात की कि मुख्तलिफ आपके बोर्ड्स हैं, ठीक है। कुछ आपकी यूके के बोर्ड्स हैं, यूएस की क्वालिफिकेशंस हैं, और कुछ आपके जो हैं वो यूके के बोर्ड्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ज़रा उसका फ्लेवर ले लेते हैं कि वो कौन से हैं। अच्छा, यूएस का सर नाम सुना है कुछ लोगों ने? कौन कौन से बोर्ड्स या क्वालिफिकेशंस हैं यूएस की? ओशा का नाम सुना है सर आप लोगों ने? ओशा क्या है? किसी ने नाम सुना है ओशा का? ओशा इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हम सब ने सर एफबीआर का नाम सुना है, ठीक है। हमें पता है कि एफबीआर क्या है। एफबीआर एक फेडरल इदारा है जो हमें रेगुलेट करता है, जिसके पास एक अथॉरिटी या मैंडेट है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इसी तरह यूएस में ये आपका समझ लें कि फेडरल लेवल के ऊपर एक इदारा है जो थ्रू एग्जीक्यूटिव ब्रांच डायरेक्ट यूएस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, एंड दे आर द अथॉरिटी टू रेगुलेट द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एट द फेडरल लेवल। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो यूएस के अंदर इस वक्त तकरीबन जो है वो 50 स्टेट्स हैं। हर स्टेट की अपनी एक बॉडी है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की, और इसके साथ साथ ये एक इदारा है जो पिछले 50 साल से फेडरल लेवल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। एंड व्हाट दे हैव डिड, दे हैव डेवलप्ड अ कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जिसमें जितना आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके लिए जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं, दे आर कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। हमें पता है कि मेरीन समंदर बहुत ज़्यादा है यूएस में, तो जो इन्होंने मेरीन के लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं दैट आर कॉल्ड मेरीन स्टैंडर्ड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं दोज आर एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस। और बाकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो सब आती हैं आपकी जनरल इंडस्ट्री की कैटेगरी में, ठीक है। ऑल रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज इन द जनरल इंडस्ट्री। जितने भी आपके ऑपरेशनल प्लांट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारा कुछ है। तो उनके लिए सर वो जो ओशा का पूरा स्ट्रक्चर है स्टैंडर्ड्स का या रेगुलेशन का, वो क्या कहलाता है? वो वहाँ पे कहलाता है रेगुलेशन। वो मैंडेटरी है सारी इंडस्ट्री के लिए। जैसे हम अपना, मैं एफबीआर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल हम सब फेस कर रहे हैं। जैसे हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न बाकायदा जमा कराते हैं, हम अपना एनुअल रिटर्न जैसे जमा कराते हैं, तो वहाँ हर कंपनी को, हर एम्प्लॉय को, हर रिप्रेजेंटेटिव को ओशा के ऊपर बाकायदा अपने आप समझ लें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न्स जमा कराने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स जमा करानी पड़ती हैं। और यहाँ पे जिस तरह से आपकी पुलिस है, पुलिस के इंस्पेक्टर्स हैं, बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे ओशा के भी इंस्पेक्टर्स हैं जो बाकायदा वहाँ पे जो है वो जब कहीं पे वायलेशंस देखते हैं तो बाकायदा वहाँ पे छापे मारते हैं, फाइन्स लगाते हैं, गिरफ्तार होते हैं लोग, ठीक है। सो दिस इज द वे जिसके तहत जो है वो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है जो भी यूएस में चल रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि ओशा जो है वो तो एक लीगल या रेगुलेटरी बॉडी है यूएस के लिए, हमारे लिए तो नहीं है, हम तो अमेरिका में नहीं रहते। तो हमारे लिए वो क्या है? वो हमारे लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है या एक बेस्ट स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, कि हम उस स्टैंडर्ड को जो है वो फॉलो कर लें। तो दैट्स वाई हमारी जो एक स्पेशलिटी है वो है यही, जो आपके जनरल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बाकायदा लोगों को पढ़ाना और इसको फॉलो करवाना। और कुछ दुनिया के जो है वो ममालिक ने ये किया है कि उन्होंने बाकायदा ओशा के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए अपने पास उस पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट किया है। बिकॉज अगर आप ओशा की वेबसाइट्स पे जाते हैं, osha.gov, तो इतनी
इंफॉर्मेशन है, इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर आप आज उनको पढ़ना शुरू करें तो मेरा ख्याल है आपको 5 साल चाहिए उसको पढ़ने के। इतने रिसोर्सेज हैं ओशा की वेबसाइट, और आप उसको जब पढ़ते रहेंगे तो वो उतनी तेज़ी से अपडेट होता रहेगा। सो दैट इज़ हाउ एक पूरा जो सेफ्टी का स्ट्रक्चर है वो यूएस के अंदर काम कर रहा है, और हमारे लिए भी एक बेस्ट मैनेजमेंट या प्रैक्टिस की शक्ल में वो है। तो इसको जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि कॉपी पेस्ट किया दुनिया के बहुत सारे इदारों ने, तो दुबई की गवर्नमेंट ने इसको कॉपी पेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ ओशार्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है। ठीक है, मेरे पास एक वीडियो है, मैं प्ले करता हूँ अभी उसकी। सो ओशार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे उन्होंने बनाई है, उसने क्या किया है, ओशा के स्टैंडर्ड्स को एज इट इज़ जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। सो द पॉइंट इज़ कि तमाम रेगुलेशंस, तमाम चीज़ें ओपनली ओशा की वेबसाइट में मौजूद हैं, और पाकिस्तान में जितनी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर डूइंग द एफर्ट टू कंप्लाई ऑन दोज स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये एक आपके सामने समझने की एक स्टडी एरिया भी है कि आप इन स्टैंडर्ड्स को सीखें, पढ़ें, और इंडस्ट्रीज भी ऑलरेडी काम कर रही हैं इनके ऊपर। सो वन थिंग इज ओशा। चलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। इसके अलावा यूएस में और बहुत सारे इदारे हैं, लाइक BCSP, बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स, जो सेफ्टी के ऊपर मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस देता है। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल की बात की, तो उस पूरी सर्टिफिकेशन के अंदर आप ट्रेनिंग कैसे करवाते हैं ये भी सीखते हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी सीखते हैं, इंडस्ट्रियल हाइजीन भी सीखते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी सीखते हैं, अर्गोनॉमिक्स भी सीखते हैं, इंजीनियरिंग भी सीखते हैं, बेसिक फिजिक्स और मैथ्स को भी कवर करते हैं, सारी केमिस्ट्री को भी कवर करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को भी कवर करते हैं, आप फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन को भी कवर करते हैं। सो बेसिकली होता ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी इदारे में जब आप एज लीड मैनेजर या आप एज सेफ्टी मैनेजर काम कर रहे हैं, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल में काम कर रहे हैं, तो जितने एरियाज जो कि वहाँ पे एप्लीकेबल हैं उनकी आपको जितनी अच्छी बेसिक नॉलेज होगी उतनी आप बेहतर कंप्लाइंस कर सकें। तो ये वो बात है जो मैं स्टार्ट में करना चाह रहा था कि सिर्फ आपका अपने शोबे के अंदर एक्सपर्ट होना और एक्सपर्ट रहना बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है आज की मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। एक्सपर्ट तो हम 1 या 2 फील्ड्स के ही हो सकते हैं, बट नॉलेज हमें मैक्सिमम एरियाज की होनी चाहिए, बेसिक स्किल्स हमारे पास सारी होनी चाहिए। सो दैट्स हाउ द BCSP सर्टिफिकेशंस वर्क। इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे। इसके अलावा NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये बहुत बड़ा नाम है। पूरी दुनिया में आपके फायर प्रिवेंशन के जितने भी कोड्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो पूरी दुनिया में NFPA के ही फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और US के अंदर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का मैंडेट भी NFPA के पास है, और ओवरऑल फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन भी NFPA के पास है। और अगर आप NFPA की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको 300 से ज़्यादा कोड्स और स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। अब वो कोड्स और स्टैंडर्ड्स किस एरिया पे हैं? मिसाल के तौर पे आपकी बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, आपके डोर्स की इंस्टॉलेशन कैसे होनी चाहिए, एग्जिट्स कहाँ होने चाहिए, इवैक्यूएशन की क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कहलाता है लाइफ सेफ्टी कोड। तो सारी आपकी लाइफ सेफ्टी कोड की कंसिडरेशन है। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरह उसको चेक करना है। सो NFPA आपको, आप समझ लें कि उंगली पकड़ के एक एक स्टेप बताता है आपको कि कैसे करना है आप। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड। एक है आपका ओशा। ओशा तो लॉ है ना, वो तो रेगुलेशन है, वो तो आपको कहेगा कि आपको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, बट उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स बताते हैं। सो NFPA इज बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड। आपको कहीं स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन है उसके बारे में बता रहा है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आपने अपने सेटअप की कैसे करनी है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोग्राम कैसे डेवलप करना है, शॉक प्रोटेक्शन कैसे करनी है, आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो कि कवर हो रही है वहाँ पर। ठीक है, सो the structure, just try to understand how the structure is working. So NFPA is playing its role, ACGIH, ABIH, NSC, मैं बताता जाता हूँ क्या है, NIOSH, और आप जनाब कह लें और भी बहुत सारे हैं, NC,
ठीक है जी, इसके अलावा आप ठीक है, फिलहाल हम इनकी बात कर लेते हैं। द पॉइंट इज कि आपकी इतनी ज़्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ACGIH इज ऑन द इंडस्ट्रियल हाइजीन, ABIS is also on the industrial hygiene, National Safety Council is working on the road safety, defensive driving, NIOSH is National Institute of Occupational Safety and Health। ये आपको तमाम इंडस्ट्रीज को रिसर्च में, हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स में, ठीक है, जैसे अब आपका ये पेंडेमिक का सिनेरियो आया है तो NIOSH आपका काम करता है इन कंजक्शन विद CDC का आप सबने नाम सुना होगा आजकल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि आपका ओवरऑल ग्लोबली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रोल प्ले किया और अमेरिका से CDC सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीजेस उसने एक जो है वो रोल प्ले किया। सो NIOSH इज बेसिकली अंडर द CDC। इसी तरह आपका NC है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट, जो कि ISO की मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है US के अंदर। तो ये मैं जस्ट चंद नाम यहाँ पे लिखे हैं आपको आइडिया देने के लिए, लेकिन आइडिया सिर्फ ये मैं देना चाह रहा हूँ कि एक पूरा स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करें कि कैसे काम कर रहा है सेफ्टी की फील्ड में, तो कहीं जाके उस डेवलप कंट्री का हमें एक कंप्लाइंस का लेवल नजर आ रहा है। 50 स्टेट्स हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हर स्टेट का अपना एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैलिफोर्निया का जो स्ट्रक्चर है वो ओशा से भी ज़्यादा सख्त है। तो कैलिफोर्निया में जो मौजूद इंडस्ट्रीज हैं वो कैलिफोर्निया की भी रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना पड़ता है, ओशा की भी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरह फिर जब आपने उन रेगुलेशंस पे कंप्लाई करना है तो यू हैव 100 ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो एक एक फील्ड के अंदर, एक एक एरिया के अंदर आपको सर्टिफिकेशंस भी दे रही हैं, क्रेडेंशियल्स भी दे रही हैं और फिर आपको सिखा भी रही हैं कि आपने वो सारा काम कैसे करें, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट, पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान की स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्री है वो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती, जितनी उनको ज़रूरत होती है वो उतना ही उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जितनी आपकी बड़े नाम हैं, चाहे आप उसमें आप कुछ में जैसे एज एन एग्जांपल कह लूँ कि एंग्रो है, नेस्ले है, जनरल इलेक्ट्रिक है, फौजी ग्रुप है, डेस्कॉन है, जितने आपके बड़े बड़े और अच्छे नाम हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर के OGDCL है, बाइको पेट्रोलियम है, PPL है, ठीक है। तो हमें ये सारे नाम पता होने चाहिए। तो ये जितनी इंडस्ट्रीज है, के इलेक्ट्रिक इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न। तो वी आर मोस्टली वर्किंग विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज दीज organizations know everything about these standards and they know the importance of these standards. So they are actually regularly training and equipping their resources, they are doing the research with us, they are doing the analysis with us. We have the panel of experts on these standards and these organizations are keen to work on that. तो ये एक चीज़ है जो पाकिस्तान में चल रही है। अगला एक सवाल मैं आपसे करूंगा क्योंकि डिस्कशन थोड़ी मज़ेदार हो गई है। पाकिस्तान में सर क्या स्ट्रक्चर है? अमेरिका का तो हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया कि कैसे फेडरल पे है, स्टेट लेवल पे है। पाकिस्तान में क्या स्ट्रक्चर है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी का? स्टेट लेवल पे हमारे पास कितने इदारे हैं और फेडरल लेवल पे हमारे पास कितने इदारे हैं? लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत अभी तक इसलिए शामिल नहीं की है क्योंकि वो रेगुलेशन जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये किस इदारे के पास इनिशिएट हुआ है? सर ये एग्जैक्टली इसका नहीं पता, लेकिन फेडरल एजेंसी है। अच्छा, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अभी किसी ऑक्यूपेशनल हिसाब से Right. इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। राइट, जैसे PC का जी। रेगुलेशन नहीं है कि हर इंजीनियर PC एलोकेटेड नंबर उसके पास होना चाहिए, जी। ऐसा उसका भी हाल है। ऐसा ही है। आई होप कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्टिविटी शुरू हो गई हो, बट जस्ट एज ए कंपैरिजन प्रैक्टिकली हमारे पास फेडरल लेवल पे कुछ नहीं। पहले तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी है ये प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है। वो आप 18वीं तरमीम कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ठीक है, ये प्रोविंसेस के उसमें आता है, जो मर्जी करें प्रोविंसेस। अच्छा, प्रोविंसेस के अंदर आपका एक स्टेट लेवल का एक्ट था जिसे ओश एक्ट आप कहते हैं, वो ड्राफ्ट हो रहा था कई ज़माने से सिंध में, लेकिन वो एग्जीक्यूट हुआ फॉर्चुनेटली बल्दिया के हादसे की वजह से।
जो आज से चंद साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसकी वजह से वो चीज़ थोड़ी सी पुश हुई और सिंध जो है वो पहला प्रोविंस बना जिसने ओशेक को पास किया, फिर उसकी कमेटी बनी, फिर 3-3.5 साल लगे, अभी भी वो इम्प्लीमेंट हुआ है लेकिन बराए नाम इम्प्लीमेंट हुआ है। अब तक मार्केट में उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कोई हादसा होता है जो चंद दिन के लिए थोड़ा सा शोर मचता है और उसके बाद खामोश हो जाती है। सर इन हाशिम में भी आग लगी थी जी। वो बल्दिया फैक्ट्री के पुलिस और नाम आया था तो ओशेक उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जी। यूनियन प्लाजा पे आग लगी थी तो उस पर भी ओशेक इम्प्लीमेंट बाय लॉ सर वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, किया नहीं था। लेकिन उस तरह से नहीं है। अच्छा फिर मैं एक और आप लोगों को मजेदार बात शेयर करूँ, बिकॉज ओशेक सिंध का भी हम पढ़ाते हैं, उसके अंदर पहले तो जो फाइन्स थे ना वो थे 2,500 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, अब उसको उन्होंने इन्हेंस करके 50,000, लाख या 1.5 लाख कर दिया है। मुझे बताएं जो इंडस्ट्री रोज का 1.5-2 करोड़ रुपये कमा रही है, वो अगर कोई वायलेशन करेगी तो लाख रुपए दे देगी, क्या मसला है उसके लिए? ओशा में सर ऐसे नहीं होता। इंस्पेक्टर के पास अथॉरिटी होती है कि एक जो डॉक्यूमेंटेड फाइन है उसको इंडस्ट्री की नेचर को देखते हुए 100 टाइम्स भी कर सकता है, 200 टाइम्स भी कर सकता है। ये अथॉरिटी होती है इंस्पेक्टर के पास। फाइन लगाया जाता है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिहाज से उसके ऊपर, ठीक है। सो it's really debatable. We have nothing on the federal level, we have nothing on the implementation level. कोई हमारे पास स्ट्रक्चर उसका नहीं है। ISO स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं, वो हैं आपके, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ, वो हैं आपके मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स। दे आर एब्सोल्युटली गुड, परफेक्ट। वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स हैं, मैनेजमेंट लेवल पे हैं, तो वो भी आप समझ लें कि थोड़ा सा आपका ओशा वाला काम करते हैं कि वो एक आपका मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर देते हैं क्वालिटी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, सेफ्टी के अंदर, और आपको क्लैरिटी दे देते हैं रिक्वायरमेंट्स में कि आप अपना मैनेजमेंट सिस्टम कैसा बनाएं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, ठीक है। जैसे हमें याद रखना चाहिए कि ISO 9001 इज फॉर क्वालिटी, ISO 14001 इज फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ISO 45001 इज फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ISO 50,001 इज फॉर एनर्जी मैनेजमेंट। ये 4-5 बड़े स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। ISO 31,000 इज फॉर द रिस्क असेसमेंट एंड द रिस्क मैनेजमेंट। हजारों स्टैंडर्ड्स हैं, लैब के भी हैं, दूसरे भी हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हैं, बट दोज आर ओवरऑल वॉलंटरी। हर मुल्क में उनकी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन भी है यूनाइटेड नेशंस की तरह, और एक स्ट्रक्चर है जो काम कर रहा है। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करता। हमारे पास कोई केमिकल सेफ्टी के एसोसिएशंस नहीं है, फायर सेफ्टी की एसोसिएशंस नहीं है, क्रेडेंशियल्स का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर हमारे पास कोई नहीं है। सो वी हैव एब्सोल्युटली नथिंग। सिंध के बाद पंजाब ने ड्राफ्ट कर लिया, उसका जो प्रोविंशियल एक्ट है वो लॉन्चिंग के फेज में है, और बाकी सूबे अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो हमारे मुल्क में मौजूद है, और इस पर थोड़ा सा हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे कि डिसीजन मेकर्स तक जो है उस चीज़ को पहुंचा सकें। राइट सर, थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं तो किस तरह के जो है वो कैरियर पाथ्स आपके लिए मौजूद हैं। ये बात हम सारी कर चुके हैं कि पर्पस हमारा क्या है कि हम एक्सीडेंट्स को कम करें, ऑक्यूपेशनल इलनेसेस को कम करें, एनवायरनमेंट के हार्म को, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट के डैमेज को कम से कम करें। एंड दिस इज द थिंग व्हिच आई वाज मेंशनिंग कि आप डाइवर्सिटी देखें एरियाज की, कि ये वो तमाम नॉलेज एरियाज हैं जो नॉर्मली सेफ्टी प्रोफेशन के अंदर चाहिए होते हैं। एज आई मेंशन अबाउट द ASP एंड CSP सर्टिफिकेशंस, तो उसमें इन तमाम एरियाज को आपको मास्टर करना पड़ता है, और फिर आपको एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ता है तकरीबन 6 घंटे का। उसको आप पास करते हैं, फिर आपको वो कॉम्पिटेंस अवार्ड होती है, ठीक है जी। सो इट्स रियली डाइवर्स, ठीक है, जिसमें ओवरऑल आप इन तमाम या इसमें से चंद स्पेशलाइजेशंस के ऊपर काम कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा स्पेशलाइजेशंस के ऊपर नजर डालें। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल हाइजीन, एनवायरमेंटल सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन, एर्गोनॉमिक्स, सिस्टम सेफ्टी, रिस्क मैनेजमेंट, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी, सेफ्टी रिसर्च, प्रोडक्ट सेफ्टी, एंड देयर आर स्टिल फ्यू ऑफ द एरियाज, दे आर नॉट ऑल द एरियाज। I can say that I am a system safety expert, electrical safety expert, and I just know about all these areas. मेरे साथ हैदर हुसैन साहब मौजूद हैं, मैं इनको भी साथ इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ कि हैदर हुसैन साहब जो हैं वो हमारे मैनेजर भी हैं,
और ओवरऑल हमारे HEC ट्रेनर भी हैं। एंड जस्ट टू कनेक्ट विद दिस, ये हमारे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के ट्रेनर हैं, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपर्टीज़ है। तो इन्होंने काम किया हुआ है आपके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में, लाइक US एम्बेसी है, आपका ये आगा खान हॉस्पिटल का भी जो रिसेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंडस हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है। और आप देखें कि 20-25 मंजिला बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट होना, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लेबर को कंट्रोल करना, सारी वहाँ पे जो क्रेन्स ऑपरेट हो रही हैं उनको कंट्रोल करना, सारी आपकी वहाँ पे जो आप ये लोड उठाते हैं रस्सियों के ज़रिए, दैट इज़ कॉल्ड रिगिंग, सारी रिगिंग और उस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना, दैट इज़ डिफरेंट एक्सपर्टीज टोटली। फिर उसके अंदर एक आपका स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हो स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का नाम आपने सुना है, वो जो एक स्ट्रक्चर सा टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर या फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के साथ लगा के मजदूर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू स्कैफोल्ड एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है स्कैफोल्ड के एक्सपर्ट्स, ठीक है। सो एज एन एग्जाम्पल आई कोटेड दैट वी आर फॉर्चुनेट इनफ वी हैव हिम इन द टीम। सो द पॉइंट इज कि सेफ्टी भी आपकी इतनी डाइवर्सिफाइड फील्ड है कि आप सारे एरियाज को कवर नहीं कर सकते। किसी एक एरिया के अंदर आपका पर्टिकुलर नॉलेज, सर्टिफिकेशन या एक्सपर्टीज होती है, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज सबकी होनी चाहिए, उसके साथ ये चीज़ आगे चलती है। और एक सवाल शायद आपके जहन में आए कि एक जो सेफ्टी प्रोफेशनल है वो सारा दिन करता क्या है। एक ये सवाल जहन में आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वाले का भी पता चलता है, ऑपरेशन वाले का भी पता चलता है, मैन्युफैक्चरिंग वाले का भी पता चलता है कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब नॉर्मली वो सारे काम हैं जो एक सेफ्टी प्रोफेशनल कर रहा होता है अपनी रूटीन में। जैसे हमने शुरू में बात की, वो ओवरऑल हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन भी कर रहा होता है, वो एक जॉब का रिस्क एनालिसिस भी कर रहा होता है। एक पूरा प्रोसीजर है ISO 31000 के मुताबिक, OSHA के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, NFPA के कोड्स के मुताबिक, या दूसरे जो भी आप कोई अगर ब्रिटिश रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो उन तमाम स्ट्रक्चर्स के मुताबिक वो तमाम एरियाज हैं। कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट की, उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन और उसके रिजल्ट्स को वापस इम्प्लीमेंट करना अपने सिस्टम में, दैट इज अ कंप्लीट एक्सपर्टीज, अ डिफरेंट फील्ड, जिसको बड़े तरीके से करना पड़ता है। आपके पास रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं, हैजर्डस मटेरियल्स की मैनेजमेंट आती है, इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस की तैयारी आती है, उसकी ड्रिल्स आती हैं। तो ये वो सारे काम होते हैं जो एक सेफ्टी की टीम या सेफ्टी के एग्जेक्टिव्स ओवरऑल प्लानिंग लेवल पे कर रहे होते हैं, और जो आपके फील्ड पे लोग होते हैं वो ओवरऑल एग्जीक्यूशन लेवल पे देख रहे होते हैं इन सारी चीज़ों। ठीक है जी। सो safety professionals are working everywhere in all type of fields, in all type of areas. और क्यों safety profession is now one of the promising professions? उसकी वजह ये है कि आपके पास flexibility होती है। इलेक्ट्रिकल का कोई बंदा है जिसका जनरेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो वो पावर प्लांट पे ही काम करेगा। सेफ्टी प्रोफेशनल कुछ साल ऑयल एंड गैस में भी काम करता है, फिर फर्टिलाइजर में भी काम करता है, फिर केमिकल में भी काम करता है, फिर वो कहीं जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर भी आ जाता है। तो चूंकि उसकी एक डाइवर्सिफाइड एक्सपर्टीज डेवलप हो रही होती है तो ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू फिट इन डिफरेंट रोल्स। ठीक है जी, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आप सर्टिफाई होते हैं और अपनी स्किल इसके अंदर डेवलप करते हैं तो उससे एक फर्दर अर्निंग एडवांटेज जो है वो बड़ा मिलता है आपको। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज BCSP सर्टिफाइड सैलरीज, almost like in the range of $66,000 to $97,000 per year। ठीक है, तो ये बड़ी एक अच्छी सैलरी रेंज है US मार्केट के हिसाब से। अच्छा, एक सर यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन का। कोई मुझे फर्क बता सकता है सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन में? अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पे सर हम बात करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन वाली एक अलग चीज़ है। किसी इंडिविजुअल के लिए, मेरे और आपके लिए सर्टिफिकेट क्या चीज़ है और सर्टिफिकेशन क्या चीज़ है? सर्टिफाई करते हैं कोई स्किल सेट, कोई थर्ड पार्टी। ओके, या आपने कोई स्किल सेट अटेन किया, सही है सर, ठीक है, प्रोफेशनल एज सही अ है, प्रोफेशनल लेवल, सही है। कोई थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट जो है ना, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन, और जो उसका पेपर है दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन। ओके, अच्छा, थोड़ा सा सर मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। खासतौर पे जो US स्टैंडर्ड है जो पूरी दुनिया फॉलो कर भी रही है, हम यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं,
एक हमारी 4 साल की डिग्री होती है, वो हमें डिग्री मिल जाती है, ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है, HCA टेस्ट भी होती है। उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? नॉर्मली कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, सारी ज़िंदगी आपके साथ है। और इसी तरह अक्सर ट्रेनिंग्स जो हम करते हैं, कहीं हमने कोई फर्स्ट एड का कोर्स कर लिया, कहीं कोई फायर का कोर्स कर लिया, कोई भी ऐसी चीज़ कर ली, तो वो होती है हमारी नॉर्मल ट्रेनिंग, जिसका हमें मिल जाता है सर्टिफिकेट। ठीक है, दैट्स जस्ट अ सर्टिफिकेट। आपने एक चीज़ सीख ली, आपको उसकी एक क्रेडेंशियल मिल गया उसका। अच्छा, इवन अगर उसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी हो, जो कि नॉर्मली होती है ओशा के मुताबिक, तो आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उसको रिफ्रेश करेंगे, राइट? तो एज पर डेफिनेशन सिर्फ रिफ्रेशर से भी वो चीज़ सर्टिफिकेशन नहीं बन जाती, वो सर्टिफिकेट ही रहती है। ट्रेनिंग का रिफ्रेशर हो जाएगा और वो सर्टिफिकेट बन जाएगा। सर्टिफिकेशन इज समथिंग विद ब्रॉडर आस्पेक्ट, जैसे BCSP की हैं या NFP की सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन सर वो होती है जिसको आपको सारी जिंदगी मेंटेन करना पड़ता है, पे करके, पैसे के जरिए भी और कंटिन्यूस डेवलपमेंट के जरिए भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अर्न्ड द सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल बन गया या मैं सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कंप्लायंस प्रोफेशनल बन गया और बात खत्म। नहीं, यहां से बात अब शुरू हुई है। मुझे सालाना बोर्ड को पे करने हैं $170 तकरीबन हमारे 35-36 हज़ार का बनते हैं एक सर्टिफिकेशन के, उसको मेंटेन करने के लिए। एक तो मुझे एनुअल फी उसकी पे करनी है, पैसा जेब से निकलेगा तो फिर थोड़ा सा दर्द होता है ना इंसान को, एक नेचुरल सी बात। अच्छा, दूसरा 5 इयर्स के बाद मेरा आना है रीसर्टिफिकेशन साइकिल, जिसमें मुझे अपने 5 साल की एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करना है कि मैंने इस फील्ड से रिलेटेड 5 साल में कितनी ट्रेनिंग्स की करवाई, कितनी नई सर्टिफिकेशंस की करवाई, कितनी कॉन्फ्रेंसेस की, कितनी रिसर्च की, कितने नए एरियाज को एक्सप्लोर किया। अगर मैं वहाँ पे बोर्ड को मुतमईन ना कर सका तो मेरी सर्टिफिकेशन कंटिन्यू नहीं होगी, और अगर मैं वहाँ पे उसको मुतमईन नहीं कर सका तो मेरे पास फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं दोबारा एग्जाम में बैठ के एग्जाम पास करूँ, अदरवाइज सर्टिफिकेशन विल एंड देयर। सो सर्टिफिकेशन इज समथिंग जो आपको सारी जिंदगी मेंटेन करनी पड़ती है, फाइनेंशियली भी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जरिए। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हमें ब्रिटिश स्ट्रक्चर में भी और US स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक बेहतर प्रोफेशनल मेंटेनेंस नज़र आती है। उसकी वजह ये है कि आप किसी भी शोबे में देख लें, चाहे सेफ्टी है, नर्सिंग है, इंडस्ट्रियल हाइजीन है, इवन आपकी टेक्निकल मेंबरशिप्स हैं, देयर इज अ ह्यूज ट्रेंड ऑफ सर्टिफिकेशंस इन द US मार्केट, हर एरिया के अंदर, हर फील्ड के अंदर। तो उससे होता क्या है कि आप किसी भी शोबे में हैं, अगर आप उसके सर्टिफाइड हैं तो उसका मतलब है कि आप सारी जिंदगी उससे अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, सिर्फ जो है वो हमारे पास CPT पॉइंट्स तो हैं, दैट इज द प्रोफेशनल इंडिकेटर, लेकिन अब उन CPT पॉइंट्स को किसी एक फील्ड के अंदर किसी सर्टिफिकेशन के साथ इंटीग्रेट होना जरूरी है, ताकि वो बाकायदा डिक्टेट कर सके कि हाँ बाकी इस फील्ड के अंदर हमने जो है वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को कंटिन्यू रखा है। ठीक है, सो दैट्स हाउ द सर्टिफिकेशन वर्क्स। और ठीक है, आई होप इट विल बी क्लियर, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेशन। अच्छा, दूसरा एक ट्रेंड जो है वो अब दुनिया में चेंज हो रहा है, पहले नहीं था। होता सर ये है कि क्या हम किसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो है वो लेक्चरर की पोस्ट पे अगर किसी बंदे के इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है इलेक्ट्रिकल की, क्या हम उसे यूनिवर्सिटी में बंदे को लेक्चरर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ठीक है, सो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन एवरी फील्ड कि आपके पास जो है वो किसी भी शोबे में, मैकेनिकल है, सिविल है, आप जितने अच्छे आपका हैंड्स ऑन है, जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, बाय एजुकेशन आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं उसके लिए। सेफ्टी में अनफॉर्चुनेटली हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक कल्चर ये रहा है कि चूंकि हमारी एजुकेशन के अंदर सेफ्टी कहीं थी नहीं, और लोग बगैर एजुकेशन के और क्रेडेंशियल्स के काम करते रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, US स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, वहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें बाकायदा बैचलर्स, मास्टर्स
और पीएचडी ना होता हो। सेफ्टी में अलग होता है, इन्वायरमेंट में अलग होता है, हेल्थ में अलग होता है, क्वालिटी में अलग होता है, चारों अलग अलग शोध हैं। पाकिस्तान में हम इन्वायरमेंट तो पढ़ा रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो सही तरीके से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ा रही हो। कुछ ने अभी इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए हैं, अक्सरियत को तो पता ही नहीं। अ वेरी बिग गैप एरिया। सो दिस इज द पॉइंट के फिर वहाँ पे अब अगर कोई गैप फिल हो सकता है तो फिर वो सर्टिफिकेशन से फिल हो सकता है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो कम से कम आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो आपकी उस एलिजिबिलिटी को बाय एजुकेशन जो है वो शो कर सके। ठीक है, सो दैट्स हाउ आपकी जो मुख्तलिफ नेशंस हैं वो इसको कंसिडर भी करती हैं। एज एन एग्जांपल जो आपकी ये सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल की जो सर्टिफिकेशन है, ये अगर आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के प्रोसेस में जाते हैं या आप कैनेडियन इमिग्रेशन के प्रोसेस में जाते हैं, सो इट्स कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट एज दे कंसिडर्ड द पॉइंट्स फॉर पीएचडी। ठीक है, तो जैसे पीएचडी के लिए पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं, इसी तरह सीएसपी या कनाडा के भी सर्टिफिकेशन है, यूके के भी सर्टिफिकेशन हैं, तो इनके कंसिडर किए जाते हैं। सो अगर आपका बाय एजुकेशन ना हो तो सर्टिफिकेशन इज अनदर वे कि आप अपनी उस एजुकेशन गैप को जो है वो फिल कर सकते हैं वहाँ पर शोबे के अंदर। ठीक है, दैट्स फाइन। सो दैट्स हाउ द एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स और द स्टूडेंट्स can add or they can tilt their selves towards the safety profession। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं कि या तो स्टूडेंट्स बाय एजुकेशन ही सेफ्टी में हो, जैसे दुनिया में होता है, आपका बैचलर्स होता है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, इवन हमारे पास नहीं है। इंडिया में उनके वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके क्वालिफिकेशन सेक्टर के अंदर ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। दे आर डूइंग एटलीस्ट बेटर जॉब देन अस इन दिस फील्ड। तो या आपके स्टूडेंट्स बाय एजुकेशन वो चीज़ लेके आ रहे हो या बाद में एक्सपीरियंस के ज़रिए, अपने असाइनमेंट्स के ज़रिए और अपनी सर्टिफिकेशन के ज़रिए जो है वो इन फील्ड्स की तरफ जाएं। तो वो एक आपने जो है ना वो अपना अवेयरनेस के साथ एक माइंड आज ओपन करना है यहाँ से, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकें और जिस हद तक चाहें उनको यूटिलाइज भी कर सकें। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन, कुछ हमने जो यूएस की बोर्ड का स्ट्रक्चर है उसकी हमने बात कर ली। यहाँ में थोड़ी सी यूके की बात कर लेते हैं। ये कुछ मशहूर नाम है सेफ्टी के अंदर, तो इनका मैं मुख्तसर जिक्र कर देता हूँ। ऑफकॉल एक गवर्नमेंट का इदारा है, जैसे पाकिस्तान में भी आपने कामयाब जवान प्रोग्राम में नाम सुना होगा नेवटेक का। ठीक है, जो आपका नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है। तो इसी तरह ऑफकॉल यूके का एक फेडरल लेवल का इदारा है जो कि वोकेशनल क्वालिफिकेशंस को रेगुलेट करता है, उनके स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो ऑफकॉल जिस तरह बाकी वोकेशनल क्वालिफिकेशंस को और उसके स्ट्रक्चर को रेगुलेट कर रहा है, इसी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है यूके के अंदर सेफ्टी क्वालिफिकेशंस को भी रेगुलेट करने। ठीक है, और एग्जैक्टली जो ऑफकॉल वाला स्ट्रक्चर है वो आप जाएंगे तो आपको नेवटेक की वेबसाइट पे भी मिलेगा, आपको एचईसी की वेबसाइट पे भी मिलेगा, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज दैट इन द वोकेशनल सेक्टर एंड स्पेशली इन द सेफ्टी सेक्टर। ठीक है जी। तो बाकी वोकेशंस के अंदर तो फिर भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट सेफ्टी के अंदर अगेन बिग गैप है हमारे इदारों की तरफ से। तो उसमें जो आपका यूके स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान में यूके स्ट्रक्चर ही फॉलो हो रहा है, जो कि ऑफकॉल वाला स्ट्रक्चर है, वो आपका है लेवल 1 से लेवल 9 तक। आप किसी चीज़ में कोई फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो वो लेवल 1 है, देन लेवल 2 है, लेवल 3 है। लेवल 6 पे जब आप आ जाते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द बैचलर्स इन अ सेंस। वैसे तो मतलब आप उसको उसके इक्वल नहीं कर सकते कि 4 साल एक बच्चा एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में पढ़ता है, क्रेडिट आवर्स होते हैं, डिग्री होती हैं, लेकिन अगर आपने जस्ट कंपेयर करना हो वोकेशनल क्वालिफिकेशन को फॉर्मल एजुकेशन से, तो लेवल 6 इज इक्विवेलेंट to the bachelor's, level 7 to the master's and level 8 and 9 to the PhD according to the structure। ठीक है, तो इस तरह करके ये कोरिलेट होते हैं आपस में। ठीक है, और इसी तरह से फिर आपके जो बोर्ड्स हैं कनाडा के, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फिर आपस में रेसिप्रोकल भी करते हैं, एक दूसरे की क्वालिफिकेशंस को और एक दूसरे के क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आयोश इज द बिगेस्ट नॉन प्रॉफिट बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा जो बेसिक सेफ्टी के कोर्सेज हैं वो आयोश के हो रहे होते हैं, हम भी करवाते हैं। और इसी तरह आयोश क्योंकि यूके का है तो इसका एग्रीमेंट है बोर्ड ऑफ CSP USA के साथ कि आपकी इन क्वालिफिकेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, आपकी इन क्वालिफिकेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आयोश से क्वालिफिकेशन नहीं की, मैंने बोर्ड ऑफ CSP से सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल किया, लेकिन जब मैं आयोश के पास गया तो दे रिकग्नाइज मी फॉर देयर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, तो आई पे देयर फी एंड विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी इवैल्यूएशन दे एक्सेप्टेड मी एज the grad Ayush, which is one of the biggest qualification in the UK structure. ठीक है, so that's why I'm grad Ayush as well on the basis of CSP. तो उसमें आप किसी एक स्ट्रक्चर में अगर एक्सेल कर जाते हैं तो वो बाकी कंपनीज के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ जो है वो उनके रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स भी होते हैं। तो ये कुछ नाम मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने तौर पे फिर जिसमें जितना इंटरेस्टेड हो इनकी वेबसाइट्स पे जाएं, देखें ये क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ नाम इस सेशन में आपको देना चाह रहा हूँ, बाकी फिर फर्दर रिसर्च और वेबसाइट टूल्स जो हैं वो आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करने हैं। सो निगोश इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्टीट्यूट और वन ऑफ द नॉन प्रॉफिट बोर्ड्स प्रोवाइडिंग सम सेफ्टी क्वालिफिकेशंस, हाई फील्ड IIRSM। तो ये कुछ मशहूर नाम है जो प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में जो है वो अपनी क्वालिफिकेशंस दे रहे हैं US मार्केट के अंदर। US की हमने ऑलरेडी बात कर ली। OSHA तो गवर्नमेंट लेवल पे है और बाकी जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं। थोड़ी सी क्विकली बात कर लेते हैं, हमने BCSP बहुत ज़्यादा की है इनकी सर्टिफिकेशंस के ऊपर, बिकॉज देयर सर्टिफिकेशंस कैन बी रियली यूजफुल फॉर अस। सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल एज आई हैव सेड इज द हाईएस्ट वन। उसके बाद CSP आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले आपके पास ना कोई बड़ा क्रेडेंशियल होना चाहिए, UK का, कनाडा का या किसी और बोर्ड का। और अगर आपके पास किसी का नहीं है तो फिर आपको BCSP से ही जो है वो करना पड़ता है ASP। तो ASP और CSP जो है वो आप समझ लें कि एग्जेक्टिव लेवल पे या एक बंदा जिसके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस हो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, कोई भी कर सकता है थोड़ा सा स्टडी करके और पढ़ाई करके। ASP के लिए आपको चाहिए होता है 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री, और ASP करने के बाद CSP के लिए आपको चाहिए होता है 4 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री। ठीक है, एटलीस्ट आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए रिकग्नाइज। और फिर उसके बाद इनका एक पूरा स्ट्रक्चर है, वो फिर आप बाद में हमारी चैनल से, हमारी रिसोर्सेज से उसका एक सिलसिला देख सकते हैं। तो पूरी दुनिया से इस वक्त जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं वो ये सर्टिफिकेशंस करते हैं। आई एम रिकग्नाइज बाय BCSP एज देयर मेंटोर। मेरा वेबसाइट पे उनकी नाम मौजूद है, आप देख सकते हैं जाके। और पूरी दुनिया से इस वक्त हम जो है वो 60 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को इस वक्त ये सर्टिफिकेशंस की तैयारी करवा रहे हैं। पिछले 1 साल में 25 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स पहली अटैम्प्ट में पास हुए हैं। तो हमारा तकरीबन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। ओवरऑल जो इस वक्त जो इसका ग्लोबल पासिंग रेशियो है वो 60% के करीब है। ठीक है, बट हम इसमें अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो वी हैव द ट्रैक रिकॉर्ड इन दैट अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी सर्टिफिकेशंस में कुछ और भी हैं, लाइक सेफ्टी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट इज़ अ वेरी गुड वन। ये उन लोगों के लिए है जिनकी एजुकेशन नहीं होती लेकिन सेफ्टी में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। CHST is related with the construction people. OHST is related with the people who are working on the occupational health and the hygiene. ये एक बड़ी ज़बरदस्त सर्टिफिकेशन है जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, जो टीचर्स के साथ बड़ी रेलेवेंट है। सर्टिफाइड इंस्ट्रक्शनल ट्रेनर, ट्रेनिंग से बड़ी ज़बरदस्त ये रिलेटेड है, बिकॉज ट्रेनिंग में हम ये समझते हैं कि खाली कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स शायद बस यही इंपॉर्टेंट है, या थोड़ा सा आप कंटेंट कैसे बनाना है इस चीज़ को सीख लें, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों। बट एज पर द CIT कंटेंट या एज पर द BCSP स्ट्रक्चर, आपकी जो मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, आपकी जो ट्रेनिंग की थ्योरीज हैं, आपकी जो साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं, आपकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेंशन हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रेनिंग फील्ड के अंदर। सो CIT इज़ वन ऑफ द सर्टिफिकेशन जो मैं बड़ा स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि टीचर्स को करनी चाहिए, और उस लेवल पे करनी चाहिए जिस लेवल पे नॉर्मली
हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये एक मेरी एडवाइस है। हमारे पास माशाल्लाह यहाँ पे भी मेरे बहुत काबिल एहतराम हमारे उस्ताद और टीचर्स मौजूद हैं, आई नो दे आर डूइंग मार्वलस जॉब, ठीक है, बहुत एफर्ट करते हैं, खासतौर पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बट स्किल डेवलपमेंट की हर एक को, हमें भी ज़रूरत है, हर एक को वक्त के साथ ज़रूरत है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सर्टिफिकेशन जो आपको उस स्किल को मास्टर करने में बहुत हेल्प करेगी, डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अलावा जो है वो थ्योरी और साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो जो आपका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो इस वक्त इस सर्टिफिकेशन को बहुत वैल्यू करता है यूएस मार्केट के अंदर, एंड दे रियली डिपेंड ऑन दैट। और BCSP सर्टिफिकेशन जो ओवरऑल डिज़ाइन है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, वो ये बेसिकली रोल्स हैं जो मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन के लोग प्ले कर रहे होते हैं। CSP और SMS जो हैं दे हैव टू प्ले देयर पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लाइंस एंड द स्ट्रैटेजी। ASP आपका फिर मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। दो नाम और लिखे हुए हैं, मैं उनकी बाद में बात करता हूँ। CIT जो है वो आपका कोर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। OHST स्पेशलाइज्ड है हेल्थ में, आपका CHST कंस्ट्रक्शन में, और STSC और STSC नॉर्मल सुपरवाइजर्स और वर्कर्स के लिए है कि वो कल्चर को प्रमोट करने के लिए अपना काम करते हैं। आसान सी सर्टिफिकेशन है। ASP इज बेसिकली फॉर द मिडिल मैनेजर्स। अच्छा, ये सब बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है। TSP और GSP ये सब सर्टिफिकेशंस नहीं है, ये डेजिग्नेशंस हैं। मैं एक थोड़ी सी टेक्निकल बात बताने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा इस पर। अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि CSP आपकी कहलाती है गोल्ड सर्टिफिकेशन, वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई आपके पास पहले बड़ी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो BCSP से आपको क्या करना पड़ता है, ASP करना पड़ता है पहले। जैसे मैंने पहले ASP किया फिर CSP किया। लेकिन US के अंदर होता ये है कि कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, दुनिया में भी और US में भी। अगर आप उस डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर सेफ्टी की वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं जो कि ASP के अंदर कवर होती हैं, और आपका वो डिप्लोमा BCSP से इंडोर्स्ड है, तो ऐसे तमाम डिप्लोमा प्रोग्राम्स कहलाते हैं TSP, वो TSP डेजिग्नेशन में आते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो आपको BCSP की वेबसाइट में मिलेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान का भी एक है, वो भी उसमें आपको नज़र आएगा। तो उन डिप्लोमा प्रोग्राम्स को जब लोग कर लेते हैं तो फिर उन्हें ASP करने की ज़रूरत नहीं होती, वो CSP डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आपकी अच्छी खासी कॉस्ट आती है ASP को भी करने में और CSP को भी करने में। और GSP क्या है, ये यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है। बहुत सारी इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ हैं US के अंदर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के कोर्सेज करवाती हैं अपने बैचलर्स प्रोग्राम में, अपने मास्टर्स प्रोग्राम में, अपने PhD प्रोग्राम में। वो अपने प्रोग्राम्स में करती क्या हैं, वो वही सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ाती हैं जो कि ASP के अंदर कवर होती हैं। तो और फिर वो यूनिवर्सिटीज़ करती क्या हैं, उन्होंने अपने डिग्री प्रोग्राम को इंडोर्स करवाया हुआ है BCSP से। तो BCSP उनको किस कैटेगरी में इंडोर्स करता है, GSP के अंदर इंडोर्स करता है। मिसाल के तौर पे DHA सोफा यूनिवर्सिटी है, वो करवाती है बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, और वो डिग्री GSP में रिकग्नाइज्ड है BCSP के पास। तो अब जो बच्चा यहाँ से डिग्री लेके निकलेगा, चूंकि वो BCSP के पास रिकग्नाइज्ड है, तो वो जस्ट जाके अप्लाई करेगा, उसको GSP मिल जाएगा और उसकी बेसिस पे वो CSP कर लेगा अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ। अब इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि TSP डेजिग्नेशन के लिए भी और GSP डेजिग्नेशन के लिए भी, हम यूनिवर्सिटी में हैं तो हम GSP की बात करते हैं। BCSP सर आपको कोई फ़ी चार्ज नहीं करता, कुछ चार्ज नहीं करता BCSP आपको सिर्फ उस प्रोसेस से गुजरना होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि BCSP ने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि US से बाहर की कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर सकती, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी कर सकती है, ठीक है जी। बट अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस ना होने की वजह से TSP डिप्लोमा प्रोग्राम्स तो बहुत सारे दुनिया के डिप्लोमास ने लिए हैं डेजिग्नेशन, लेकिन GSP डेजिग्नेशन US से बाहर मौजूद किसी भी यूनिवर्सिटी ने अब तक नहीं ली। तो एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान कैन बी द फर्स्ट वन टू गेट दैट डेजिग्नेशन, ठीक है। उसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आपका सेफ्टी का या इन्वायरमेंट का एक डिग्री प्रोग्राम हो जिसके अंदर आप ASP के कंटेंट पढ़ा रहे हो सारे के सारे, और आपके सर्टिफाइड लोग जो हैं वो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो दिस इज आई थिंक द न्यू
एरिया यही हम सारी GST की बात कर रहे हैं। जितने आपके अप्रूव डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो आपको लिस्ट उनकी BCSP की वेबसाइट पर नज़र आ जाएगी, वो आपके कहलाते हैं क्वालिफाइड एकेडमिक प्रोग्राम्स। सो समिंग अप ऑल द डिस्कशन, जस्ट उसको सम अप करते हैं कि अगर हम अपने एग्जिस्टिंग कैरियर के साथ इन सेफ्टी की स्किल्स को ऐड करते हैं तो इंटरनेशनली हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, पावर प्लांट में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में वी हैव अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। हमें ये लगता है कि हमारे लिए जॉब्स नहीं है। मैं अगर इंडस्ट्रीज के एंड पे देखता हूँ, उनके एग्जीक्यूटिव से बात करता हूँ तो सर उनको उनकी रिक्वायर्ड प्रोफाइल के लोग नहीं मिलते मार्केट में, उनको उनकी रिक्वायर्ड स्किल के लोग नहीं मिलते मार्केट में। ठीक है, मुझे एक स्किल्ड मैनेजर मुझे जिस तरह का चाहिए था, मुझे 4 महीने लगे वो ढूंढने में। ऐसे तो आप जॉब ऐड दें तो आपको 1000 एप्लीकेशन आ जाती हैं, बट अगर हम एम्प्लॉयर एंड पे देखते हैं तो हमें मार्केट में वो स्किल नहीं मिलती जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए। दिस इज अ रियल बिग गैप। जो आज के हमारे सेशन का मकसद यही है कि हम प्रोफेशनल्स के साथ अपने बच्चों को ये अवेयरनेस दें कि भाई ये सारी स्किल्स लेके मार्केट में जाएं ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। पाकिस्तान में भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले वक्त में एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में अभी तक हैं तमाम सेक्टर्स में वो ऑर्गेनाइजेशन की अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस की वजह से हैं। या क्या होता है कि आपका कोई फॉरेन लेंडर है या फॉरेन इन्वेस्टर है, लाइक वर्ल्ड बैंक है, IFC है, कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको पता है इन सारी चीज़ों का, वो जब आपको पुश करता है तो आप इन सारी कन्फॉर्मेंसेस को करते हैं। जैसे आपका विंड पावर सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इनके जो फाइनेंसर्स हैं दे नो ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वो आपको पुश करते हैं, वो आपको रेगुलेट करते हैं उसके ऊपर। लेकिन उतना ज़्यादा इसलिए नहीं है कि अभी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। मैं अगर अपना एक बिजनेस शुरू करता हूँ, मैं अपनी एक फैक्ट्री लगा लेता हूँ, उसमें मैं 1000 लेबर को एम्प्लॉय कर लेता हूँ, चूँकि मेरा फेडरल मुझे रेगुलेट नहीं कर रहा है, चूँकि मेरा प्रोविंस मेरी स्टेट मुझे रेगुलेट नहीं कर रही, मैं जो मर्जी करूँ, हर दूसरे दिन मजदूरों के जलने के वाक़यात होते हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना कोई स्टेट रेगुलेशन एक्टिव होती है, ना कोई फेडरल रेगुलेशन एक्टिव होती है, डिस्कशन होती है मीडिया में और ख़त्म हो जाती है बात सारी। ठीक है, तो ये कल्चर बहरहाल वी होप एंड वी आर होपिंग फॉर दैट, वी आर स्ट्राइविंग फॉर दैट एज वेल कि ये कल्चर चेंज होगा और ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में फेडरल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर भी देखेंगे और स्टेट रेगुलेटरी स्ट्रक्चर भी देखेंगे एंड अ बिग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इज कमिंग टू पाकिस्तान। तो फिर जब आपका रेगुलेटरी स्ट्रक्चर आ जाता है ना तो फिर आपकी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, क्योंकि हर फैक्ट्री, हर प्रोडक्शन सेक्टर, हर ऑर्गेनाइजेशन बाउंड होगी कि उसने फायर प्रिवेंशन, सेफ्टी कंप्लाइंस, हेल्थ कंप्लाइंस के ऊपर भी रिसोर्सेज रखनी है, खाली उसने लेबर और टेक्निकल रिसोर्स नहीं रखना। ठीक है, सो ये इंशाल्लाह एक बड़ा एक्सपोनेंशियल पेस है जो डेवलप होने जा रहा है आने वाले वक्त में। सो अभी भी हमारे पास पावर सेक्टर में, प्रोडक्शन सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में, फर्टिलाइजर में, एजुकेशन में, टेलीकॉम में, R&D में वी हैव some very good opportunities in occupational health and safety at the moment। और जैसे मैंने शुरू में कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि स्पेशलाइज्ड अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन आप किसी भी शोबे में हैं, मार्केटिंग में हैं, कंप्यूटर साइंस में हैं, किसी भी शोबे में हैं, जितने हमने बोर्ड्स की क्वालिफिकेशंस की बात की उनको देखें, उनकी क्वालिफिकेशंस को रिव्यू करें, हैदर साहब से कनेक्ट हों, मेरे साथ कनेक्ट हों, अपने करियर को डिस्कस करें, कोई भी एडवाइस लें। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर द लाइक वॉलंटरी एडवाइस, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, जिसमें हम बिल्कुल आपको गाइड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको अपने करियर में लेके जाना चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशन है, कौन सा क्रेडेंशियल है जो सूटेबल रहेगा उसमें आपके लिए। तो बहरहाल पाकिस्तान का जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है, पाकिस्तान का जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, वी मस्ट से प्राउडली दैट दे आर डूइंग मार्वलस जॉब एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैं ऑयल एंड गैस की जितनी कंपनीज के नाम लूँ, दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब एज फार एज हेल्थ एंड सेफ्टी इज कंसर्न। चाहे आप PPL की बात करें, चाहे आप OGDCL की बात करें, OGDCL इज़ आवर क्लाइंट। ठीक है, हम उनको कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग्स भी देते हैं, दूसरी ट्रेनिंग्स भी देते हैं, दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब। आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर, चाहे आपका फौजी फर्टिलाइज़र हो, फातमा फर्टिलाइज़र हो, एंग्रो फर्टिलाइज़र हो,
उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनसे गोरों ने सीखा है यहाँ पे आके. So they are as much good. ठीक है, बट स्टिल they have not stopped. इन तमाम चीज़ों के ऊपर कुछ कन्फॉर्मेंसेज में अभी भी वो बहुत दूर हैं. So they are really trying their level best. As an example, अगर आप थोड़ा सा, जैसे आपका बहुत बड़ा है फातिमा फर्टिलाइजर. फातिमा फर्टिलाइजर ने आज से 4 साल पहले एक पायलट प्रोजेक्ट किया था जिसमें उसने अपने एक एक प्रोसीजर को, एक एक अपने प्रोसेस को ओशा स्टैंडर्ड की एक एक क्लॉज के अगेंस्ट कंफर्म किया. एंड नाउ दे प्राउडली राइट विद देयर नेम दैट वी आर ओशा कंप्लाइंट. अमेरिका के अंदर तो वो नहीं है, क्या जरूरत है अपने आप को ओशा कंप्लाइंट करने. ठीक है, तो जब उन्होंने फिर ओशा कंप्लाइंट किया, फिर वो यकीनन और कोर्स के ऊपर भी गए, वो और चीज़ों के ऊपर भी गए. ठीक है, तो वो रेगुलरली जो इंडस्ट्री है वो अपने आप को उसके अंदर डेवलप करती रहती है बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि ये चीज़ रुकती नहीं है कहीं पर भी. सो दैट्स वाई आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दैट अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंड दे आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इंशाल्लाह. ठीक है जी, सो बस आप तैयार रहें अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है. थोड़ा सा हमने लेट शुरू किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम बस आपका और लूँगा, उसको हम कंक्लूड करते हैं. व्हाट वी कैन डू इन द यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं और फिर स्पेसिफिक हम DHA सोफा के लिहाज से भी बात करेंगे. ये सेमिनार जिस तरह हमने किया, वी आर ऑलवेज अवेलेबल. कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंडस्ट्री इस तरह का सेमिनार हमसे करवाना चाहे, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द अवेयरनेस सेशंस. इसके अलावा वी कैन brainstorm to develop the ISO standard at the university level, because आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपना मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड डेवलप करें, तो आपको, ताकि आपको रिक्वायरमेंट्स में क्लैरिटी आए. तो इसीलिए एज द फर्स्ट स्टेप जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप को सर्टिफाई करती हैं क्वालिटी ISO 9001 के ऊपर, इन्वायरमेंट ISO 14001 के ऊपर, सेफ्टी ISO 45001 के ऊपर. वो ये बात कर रहे थे कंपनी सर्टिफिकेशन. ठीक है, तो वो पूरा उसका स्ट्रक्चर है जिसमें पाकिस्तान में बहुत अच्छी कंपनीज है जो काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं. सो वी हेल्प द कंपनीज टू गेट दोज ISO सर्टिफिकेशंस. तो ये एक पहला स्टेप होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कम से कम ISO सर्टिफाई तो हो आप, कम से कम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे. उससे क्या होता है, आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आपने करना क्या है अपने मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर. फिर आप 1 बाय 1 जो है वो जो डिटेल्ड आपके एक्सपर्ट स्टैंडर्ड्स हैं या इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनकी तरफ जाने की आप पोजीशन में आ जाते हैं. तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट क्वालिटी हेल्थ. इनफैक्ट अक्सर कंपनीज इसको इकट्ठा करवाती हैं सारी चीज़ों को एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, जैसे मैं खुद जब एंग्रो सेटअप पे था तो मैंने वहाँ पे जो पावर प्लांट था वहाँ मैंने क्वालिटी और एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करके करवाया था वहाँ. अब फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर वहाँ पे हेल्थ का हुआ. तो इसी तरह कंपनीज जो हैं वो क्वालिटी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इवन एनर्जी को भी अब ऐड कर लेती हैं इसके अंदर कि आप बिल्कुल ऑप्टिमम तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें. पूरा उसके ऊपर ISO की गाइडलाइंस है. ठीक है जी. इसी तरह इमरजेंसी ड्रिल्स, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, वी कैन प्ले द रोल इन दैट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खुदा न ख्वास्ता अगर इस वक्त किसी भी किस्म की कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाए, कहीं आग लग जाए, तो हम सबको पता होना चाहिए, हम सबको ट्रेन होना चाहिए इस चीज़ में कि हमने किस तरह से निकलना है यहाँ से. अगर कहीं पे कोई आग लगी हुई होगी तो हमने एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है, असम्बली पॉइंट पे हमें कैसे जाना है. ठीक है, और कुछ एक्सपर्ट्स ने अगर कुछ लोगों को इवैक्यूएट करना है तो कैसे करना है. तो व्हेन वी से इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, तो ये बहुत बड़ा कैनवस है. ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है, पहले से लोगों के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करने पड़ती हैं. इमरजेंसी सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें. दैट्स अ पैनिक सिचुएशन. वहाँ ये नहीं हो सकता. यू हैव टू क्लियरली प्लान एंड डिफाइन ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी पर्सन. और ये खास तौर पे जो आपका यूनिवर्सिटी जैसा सेटअप है जहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, विजिटर्स भी हैं, लोग भी हैं, तो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस लेवल प्लान एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. और फिर उसकी ड्रिल्स आप मंथली बेसिस पे करवाते हैं ताकि सब लोग उस पर सिंक्रोनाइज हों. ये तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम अच्छी इंडस्ट्रीज करती हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है. अनदर थिंग विच वी कैन डू इज़ कि हमने बहुत सारी कोर्सेज की, बहुत सारी ट्रेनिंग की बात की, तो हम आपकी जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है उसके साथ हम ऑलरेडी डिस्कशन में हैं, सर के साथ, हारिस साहब के साथ,
कि हम इनको एक यूनिवर्सिटी के साथ MOU करके इंशाल्लाह एक सीरीज़ लॉन्च करें यहाँ पे CPD कोर्सेज की, ठीक है। तो वो 1 by 1 हर स्पेशलाइज्ड एरिया में वी कैन इंक्लूड द फर्स्ट एड, वी कैन इंक्लूड द फायर प्रिवेंशन, वी कैन हैव द स्कैफोल्ड ट्रेनिंग, वी कैन हैव द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लेवल वाइज ट्रेनिंग, ठीक है। तो वो सारा सिलसिला है जो हम बिल्कुल इंशाल्लाह यहाँ पे कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको एक CPD एक्टिविटी के तौर पे जो है वो प्लान करें ताकि जो हमारे इंजीनियर्स हैं उसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट का भी जो है वो फ्लेवर मिल जाए उसमें। इसी तरह जैसे हमने बात की, वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम उस GSP अपॉर्चुनिटी के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पैसे तो उसमें खर्च होने नहीं हैं। सो क्यों हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस करें और क्यों ना हम पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी बन जाएं जो कि GSP डेजिग्नेटेड हो। तो दिस इज़ ऑलवेज द ओपन अपॉर्चुनिटी और हम बिल्कुल अवेलेबल हैं उसमें हेल्प करने के लिए। NFPA के जैसे मैंने बात की, देयर आर 300+ कोर्स, तो चाहे हमने यहाँ फैसिलिटी लेवल पे उसकी कंप्लाइंस करनी है, उसकी ट्रेनिंग करवानी है या कोई भी सर्विस देनी है, दैट इज़ इन आवर डोमेन। एंड देन द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी विच NFPA 70E, तो ये है कि आप सब लोगों के जो ईमेल एड्रेस हैं वो हम हमारे हिसाब से कोऑर्डिनेट करके ले लेंगे। तो इंशाल्लाह हैदर साहब जो हैं वो आप लोगों को एक डिटेल्ड लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज शेयर करेंगे। एक तो इस सेशन की वीडियो तो आप लोगों को मिल ही जाएगी बाद में, बाकी हमारे YouTube चैनल के ऊपर डिटेल्ड अवेयरनेस सेशन वीडियोस हैं 70E के ऊपर, OSHA के ऊपर आपको अलग से मिलेंगी, BCSP सर्टिफिकेशंस के ऊपर आपको अलग से मिलेंगी। तो इसी तरह हमने ऑनलाइन 2-2, 2.5 घंटे के ना पूरे अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट किए हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को लिंक आ जाएगा, आप उसको जितनी दफ़ा मर्जी चाहें हमारे YouTube चैनल से देखें अपनी अवेयरनेस के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, और किसी चीज़ के लिए हमसे कनेक्ट होना चाहें तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह एक डिटेल्ड ईमेल आ जाएगी। और इसके साथ साथ एक तो आप लोगों को CPD सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा ही, हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह आप लोगों को जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है वो इशू होगा सब लोगों को उस ईमेल के अंदर इंडिविजुअली हर एक, ठीक है सर। सो समिंग इट अप, व्हाट वी कैन डू विद DHA SOFA, एक हमने जैसे ऑलरेडी बात कर ली कि हम एक CPD सीरीज वी आर अवेलेबल, हम इंशाल्लाह इसको शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हम OSH कोर्स को कोर्स कंटेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करें। वी नो कि हमें कुछ मसाइल हैं, ख़ास तौर पे हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर मेरी हमारे साहब से बात हुई है इस पे कि हमारा एक स्ट्रक्चर है, PEC का अप्रूव्ड स्ट्रक्चर है, हम उसको ऑल्टर नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या अप्रूव कोर्स हैं, जैसे एक कोर्स में हारिस साहब, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि माशाल्लाह हारिस साहब बड़ी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, वो बाकायदा OSHA को पढ़ा रहे हैं उसके अंदर। तो सर आई एम ऑलवेज अवेलेबल कि उस कोर्स में या उस तरह के कोर्सेज में अगर जो है वो कुछ क्रेडिट आवर्स में हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस करना हो या उन चीज़ों को डिस्कस करना हो, ताकि हम वही जो हमारा मकसद है हम वो स्किल जो है किसी शक्ल में बच्चों को दे सकें। जी सर। और आ जाएंगे जी सर। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बेसिकली नया एक फ्रेमवर्क दिया है करिकुलम का, जो अगले साल से शायद इम्प्लीमेंट हो, तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी का एक कोर्स उन्होंने डाल दिया है आह्वान के बाद। वेरी गुड। फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने मैंडेटरी किया है फॉर एवरी इंजीनियरिंग प्रोग्राम। वेरी गुड। तो मतलब अब उसमें ये है कि हम किसी कोर्स में अलग से मतलब कोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू ऐड कंटेंट इन अदर कोर्सेज। ये तो सर बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज द गुड पॉइंट इज कि हमारी तरह प्राइवेट सेक्टर से, कमर्शियल सेक्टर से बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम भी ऑलरेडी जो है वो नेपटेक के साथ बात कर रहे हैं, HEC के साथ बात कर रहे हैं, तो इसी तरह बहुत सारे लोगों ने, आई नो कि उन्होंने एफर्ट्स कुछ की हैं PEC के साथ। तो अगर ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है तो दैट्स वेरी गुड। उसके लिए सर मैं एडवाइस ये करूँगा कि हमारी जहाँ ज़रूरत हो हम इंशाल्लाह हाजिर हैं, और उसमें इंशाल्लाह जो है वो अपनी फैकल्टी को ज़रूर तैयार करें। यानी अगर वो कोर्स आपके पास आया है तो एटलीस्ट आपकी फैकल्टी के लोग सर्टिफाइड हों कुछ क्रेडेंशियल्स के ऊपर, तो उनको भी वो सॉलिड सेफ्टी का बैकग्राउंड हो, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से उनको बच्चों को पढ़ा इस चीज़ में जो है ना आपकी एडवाइस चाहिए होगी। बिल्कुल। प्लस हम ये भी आगे याद करके चाहेंगे कि हम जो कोर्स एडवांस के डाल पढ़ा रहे हैं ना, तो उसका वो सर्टिफिकेशन हो, स्टूडेंट को डिग्री के साथ वो सर्टिफिकेशन मिल जाए उसको। हाँ, इस पर सर बिल्कुल मतलब
BCSP से बात की जा सकती है कि हमारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिसमें हम इतने लर्निंग आवर्स जो हैं वो हम पढ़ा रहे हैं और हम ये सारा कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें सर मेरी एक सजेशन ये है कि इंशाल्लाह मैं उसमें हाजिर हूँ कि जिस वक्त आप उसका डिटेल्ड करिकुलम प्लान कर रहे होंगे, चाहे PEC की तरफ से जो भी आए, अगर उनको भी आप एडवाइस कर सकें, तो ASP का आपको स्ट्रक्चर जो नज़र आएगा दैट्स कॉल्ड ASP ब्लूप्रिंट, मैं आपको अलग से शेयर भी कर दूंगा, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वो सारे टॉपिक्स जो है ना वो ज़रूर इंटीग्रेटेड हैं। मैं हाजिर हूँ सर उसका ज़रूर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मूविंग ऑन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी चूँकि एक इटसेल्फ स्पेशलाइज्ड शोबा है, ठीक है, तो वो हम आज के सेशन में उसको कवर कर नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो उसकी जो है वो आप लोग वीडियो भी देखें, और चूँकि हमारे पास इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो होपफुली मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर हिसाब से कि हम जो नेक्स्ट CPD सेशन है वो सिर्फ हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर रखें, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह एक सेशन भी यहाँ पे रख लेंगे, और जो वीडियो कंटेंट है हमारे चैनल पे उसको आप देख के जो भी उसके लेवल्स हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप ज़रूर देखिएगा वहाँ से। सो इसी तरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए आई वुड रेकमेंड कि हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को अपने कंटेंट में भी इंट्रोड्यूस करें, अपने कोर्स के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, बिकॉज दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो गैप एरिया इसलिए है कि सर बाकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की चीज़ें हैं ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो किसी भी शोबे का बंदा सीख सकता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिर्फ इलेक्ट्रिकल का बंदा ही कर सकता है, जिसके पास या बाय एजुकेशन या बाय एक्सपीरियंस उसकी नॉलेज है। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि जब मैं प्राइवेट मार्केट में आया, 25 से ज़्यादा कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही थी, लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में काम नहीं कर रहा था, बिकॉज उनका नहीं था रेलेवेंस। मेरी फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिकल के साथ रेलेवेंस थी, सो आई जस्ट पिक्ड इट, यार ये एक गैप एरिया है, सो वी कैन डू दैट। और अभी मेरी जो है वो डॉक्टर साहब से कुछ देर पहले बात भी हो रही थी कि सर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है वो उसका रिसर्च के अंदर भी बहुत बड़ा गैप एरिया है। अब मैं ऑलरेडी चूँकि इसके अंदर सर्टिफाइड हूँ, और स्पेस एजेंसीज के साथ और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन में मैंने लास्ट ईयर एक पेपर भी प्रेजेंट किया सर, मैं वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो उसमें मैं बाकायदा रिसर्च कर रहा हूँ इस एरिया में, और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो दो बड़े आपके एरियाज़ हैं, शॉक प्रोटेक्शन एनालिसिस और आर्क फ्लैश एनालिसिस, इसकी रिसर्च बहुत वीक है इस वक्त, ठीक है। इवन US की कुछ कंपनीज काम कर रही हैं, मैच्योर नहीं है, बहुत गैप है। बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हम इसमें कर सकते हैं, और इनफैक्ट मुझे इसकी रिसर्च के लिए सर स्टूडेंट्स चाहिए भी होंगे, तो वी विल डेफिनेटली कोऑर्डिनेट कि हम इसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स कुछ आप लोगों के लैब सेटअप में, और इसके कुछ थ्योरेटिकल और कुछ सिमुलेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम इनिशिएट करें इंशाल्लाह उसको 70 बेस्ड, क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर लुकिंग फॉर द प्रोफेशनल्स हु कैन डू दीज सर्विसेज। सो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया। इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो प्रोफेशनल्स और बच्चे यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करें, उनके लिए हम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के जो भी आपके इंक्यूबेशन की एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड द स्टूडेंट्स टू प्ले आवर रोल, बिकॉज हम उस पूरे प्रोसेस से भी गुजरे हैं कि स्क्रैच से एक बिजनेस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। सो वी आर ऑलवेज देयर टू कंसल्ट द स्टूडेंट्स ऑन दैट। और फायर प्रिवेंशन और इमरजेंसी के ऊपर तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो आई होप कुछ थोड़ी बहुत जो है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपकी उसमें आई होगी नॉलेज में। एनी क्वेश्चन सर प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो हैजर्ड्स की स्लाइड दिखाई उसमें हैजर्ड नेचुरल हैजर्ड भी हो सकता है, अर्थक्वेक, टॉर्नेडो हैजर्ड जो है वो मटीरियल हैजर्ड भी हो सकता है, जैसे आपने बताया कि कोई अनइंसुलेटेड वायर है दैट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन और एनीथिंग। ये जितने स्टैंडर्ड्स हैं, जो ह्यूमन एक हैजर्ड है कि एक बंदा जॉब पे है, स्ट्रेस्ड आउट है, या उसकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत हेस्टली कंक्लूड हो गई है, वो अपने आप को प्रिपेयर्ड फील नहीं कर रहा कि मैं ये हैंडल कर लूँगा। कभी कभी नुकसान का बायस, एक्सीडेंट का बायस ह्यूमन एलिमेंट होता है। विद ऑल द सेफ्टी, मटीरियल सेफ्टी इम्प्लीमेंटेड, कभी कभी इंसान से गलती होती है क्योंकि उसका जहन कहीं और होता है। तो मेरा कहने का सवाल ये है कि ये जितने स्टैंडर्ड्स हैं, ह्यूमन एलिमेंट को क्वांटिफाई किस तरह करते हैं?
बाकी मटीरियल हैजर्ड, नेचुरल हैजर्ड तो क्वान्टिफाइबल है कि अर्थक्वेक के लिए ये इतना लोड बेयरिंग होना चाहिए, फायर एग्जिट्स कितने होने चाहिए, 5-6. ह्यूमन एलिमेंट को प्रोफेशनली यूएस में ह्यूमन हैजर्ड, हाउ इज इट मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइबल? वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन. इस पे मैं 2 नाम लिखना चाहूँगा बिकॉज दिस इज द एरिया जिस पे अब इंडस्ट्री जा चुकी है. दिस इज कॉल्ड बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी. बहुत सारी दुनिया की कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इस वक्त नाम बनाया है पिछले 30-35 साल में अमेरिका की कंपनी है डूपॉन्ट के नाम से. ठीक है, एक तो ये है. दूसरा है आपका एक एलिमेंट सर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारी सेफ्टी में फील्ड है, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, एक तो इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरा रूट कॉज एनालिसिस, उसमें सारा फॉल्ट ट्री एनालिसिस, रिलायबिलिटी एनालिसिस, अला बला फिमिया, वो सारे एनालिसिस करके कोशिश करते हैं कि आप रूट कॉज पे जो आपके ह्यूमन एलिमेंट या आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वहाँ से चीज़ों को रिलेट कर सकें ताकि उसको राइट एट द रूट उसको करेक्ट करें. एक बात. दूसरी बात ये, जितनी आपकी इंडस्ट्रीज जो ओवरऑल सारे सेफ्टी के एरियाज में एक कंप्लाइंस लेवल अचीव कर चुकी हैं, उसमें मैं पाकिस्तान के नाम लेता हूँ, उसमें आपके ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं, उसमें आपका किसी हद तक की इलेक्ट्रिक है, उसमें आपका पाइको पेट्रोलियम है, नेस्ले पाकिस्तान है, पेप्सिको है. तो तमाम एरियाज के साथ साथ दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी. इसमें किया क्या जाता है, ये डूपॉन्ट खासतौर पर क्या करता है इसमें, ये आते हैं, ये इतने फॉर्म्स का ढेर लेके आते हैं आपकी इंडस्ट्री में. आपके एक एक बंदे के कई इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, उसका मेडिकल रिकॉर्ड देखा जाता है, उसका हेल्थ रिकॉर्ड देखा जाता है, उसकी हैबिट्स देखी जाती हैं, उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स की जाती हैं, उससे मुख्तलिफ क्वेश्चनर्स फिल करवाए जाते हैं. सो ये करते क्या हैं, क्वेश्चनर्स के ज़रिए, एनालिसिस के ज़रिए, मेडिकल टेस्ट के ज़रिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए दे कलेक्ट दिस मच अमाउंट ऑफ डाटा और फिर उस सारे डाटा को अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल्स में डालते हैं और वहाँ डाल के बाकायदा प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये बिहेवियर एलिमेंट्स हैं, इनको आप देखें, इन पे आप काम करें. अगर इस वाले एलिमेंट को आप ठीक नहीं करेंगे तो हमारे मॉडल के मुताबिक तकरीबन इतने महीनों बाद या इतने साल बाद इस तरह का एक इंसिडेंट आपके प्लांट पे होगा. सो दैट इज़ हाउ दे फोरकास्ट. मैंने शुरू में अपनी मैनेजमेंट टीम एक दिखाई थी, उसमें डॉक्टर उमैर साहब हैं हमारे साथ, इस्लामाबाद से कॉन्सेप्ट्स में काम कर रहे हैं. सो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल इन पाकिस्तान जो PhD हैं बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में. ठीक है, सो वो एक बहुत बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसमें ऑलरेडी कुछ PhDs हमारे साथ काम भी कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा रिसर्च सेक्टर है जिसपे डूपॉन्ट ने तो खैर पिछले 45 साल से बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हो रही है पूरी दुनिया में इसके ऊपर. सो दिस इज़ वन एलिमेंट जिसमें इस तरीके से बहुत ज़्यादा काम किया जाता है इसमें. जी सर, एनी अदर थिंग, कोई आसान सवाल, कोई अपने से रिलेटेड सवाल, कुछ भी जहन में आ रहा हो प्लीज़. हाँ, कुछ ने सर शायद बाद में ज्वाइन किया है, ऑन बोर्ड ना हो सके हो. राइट, आप रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की तरफ कैसे अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं? अगर सर हम ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को सीखें. ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को सीखने के लिए वी हैव अ सीरीज ऑफ कोर्सेज. ठीक है, इसलिए उसमें मैंने इसलिए कहा कि मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि हम नेक्स्ट सेशन उसके ऊपर रखें. मैं एक ब्रीफ उसका दे देता हूँ. वो ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है उसके मैं अगेन NFPA या US के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ. उसके 3 पिलर्स हैं. एक पिलर है वहाँ पे उसका नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, जैसे हमारा भी नेपरा का ग्रिड कोड है जो सारी इंडस्ट्रीज फॉलो कर रही हैं. एक होते हैं आपके मेंटेनेंस प्रोसीजर, मेंटेनेंस प्रोग्राम्स. ठीक है, और तीसरी आपकी होती है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. तो वहाँ पे जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है US स्ट्रक्चर के अंदर, वो इन तीनों पिलर्स के अंदर खड़ा है. तो आपको पहली बात तो ये है कि आपको ओवरऑल जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की पर्टिकुलर नॉलेज है उसमें आपको देखना चाहिए कि आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है, वो अच्छे तरीके से करें. मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड है NFPA 70B.
ठीक है, उसको देखें जाके NFP की वेबसाइट से। हम नेशनल इलेक्ट्रिक कोड जो है, अगर आप NFP का देखना चाहते हैं तो इट्स NFPA 70 सिर्फ 70 जो है या 70 जो है वो नेशनल इलेक्ट्रिक कोड है। 70B जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एट द सेटअप्स। और तीसरा स्टैंडर्ड जिसमें मेरी अपनी सर्टिफिकेशन भी है, दैट्स इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, NFPA 70E। ठीक है जी, तो NFPA 70E के अंदर फिर हम बाकी चीज़ों का भी इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। 8 आवर्स की एक हमारी होती है फाउंडेशन ट्रेनिंग, जिसमें आप बिल्कुल उसकी बेसिक थ्योरी और बेसिक एस्पेक्ट्स को सीखते हैं, वो आप ज़रूर सीखें। उसके बाद फिर होती है एक 16 आवर्स की ट्रेनिंग, जिसमें आप उसके एडवांस एस्पेक्ट्स को सीखते हैं, पूरे स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करते हैं। आप सीखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, शॉक प्रोटेक्शन के क्या तरीक़ेकार हैं, आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन के क्या तरीक़ेकार हैं, PPEs की क्या कैटेगरीज होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। तो पूरे स्टैंडर्ड को आप इंटरप्रेट करना सीखते हैं, वो आप सीखें। ठीक है, वी आर अवेलेबल फॉर दैट। और फिर उसके बाद तीसरा आपका लेवल ये है कि अगर आप NFPA से सर्टिफाई होना चाहते हैं तो फिर आप उनके एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर होंगे और उनके एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जितने भी बच्चे जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं या रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं, आपको 8 आवर्स तो फ़ौरन कर लेना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको 16 आवर्स का कभी जो कोर्स है वो जितना जल्दी अगर आप कर लें तो इट्स गुड। तो अगर आपकी प्रोफाइल में ये चीज़ होगी, आप कहीं भी जॉब के लिए जा रहे हैं और वहाँ आप अपनी कॉम्पिटेंस को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कि सर मैं 70E में ट्रेन हूँ और मैं बाकायदा इसको सीख के आया हूँ, तो दैट विल ऐड सम वैल्यू। और बाकायदा आप किसी इलेक्ट्रिकल प्लांट पे या किसी सेटअप में जाके काम करेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली उसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर देंगे वहाँ जाके। ठीक है, सो दैट विल गिव यू द यूनिक फीचर। द रीज़न इज़ कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया सर, कि मैं डेस्कॉन के भी इवन पावर प्लांट्स पे या अलवारियों के भी पावर प्लांट्स पे उन लोगों को भी इस चीज़ का नहीं पता था जो सीनियर इलेक्ट्रिकल मैनेजर्स थे, ऑपरेशन मैनेजर थे, 12-12 साल से 15-15 साल से काम कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी एरिया जिसको आप लोगों को कवर करना चाहिए और देखना चाहिए। तो हमें सर आप ईमेल लिस्ट सबकी दे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इनिशियली सबको भिजवा देंगे और हम कोशिश करते हैं कि हम नेक्स्ट सेशन जो है वो रखें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर। ठीक है, प्लीज़। सर मैंने रिसेंटली सर निगोश की सर्टिफिकेशन ली, तो सर एलिजिबल हो सकता हूँ CSP IG ITIL निगोश IG और ITIL IG नहीं, उसकी वजह ये है कि IG इज लेवल 3, जो निगोश का एग्रीमेंट है BCSP के साथ वो IDIL के अगेंस्ट है। IDIL इज लेवल 6। ठीक है ना, IDIL और IG का फर्क तो आपको पता है ना, तो वो IDIL के अगेंस्ट है, IG के अगेंस्ट नहीं। तो आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप ASP और CSP करें, वो ज़्यादा सूटेबल है आपके। ASP होगा then CSP and sir what about the process safety course? ज़रूर करें। अच्छा, वो सर आपके क्वेश्चन से भी रिलेटेड है। जी बड़ा आपने अच्छी बात की, मैं उसको मेंशन करते हुए चलते हैं। भोपाल इंसिडेंट का सुना हुआ किसी ने? जो यूनियन कार्बाइड प्लांट एग्जैक्टली इंडिया 1984 में यूनियन कार्बाइड का एक इंसिडेंट हुआ था भोपाल में, इंडिया में। इंसिडेंट तो सर बहुत छोटी चीज़ है, दैट वाज अ बिग डिजास्टर केमिकल इंडस्ट्री की तारीख का, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग की फैटेलिटी हुई और आज तक जनरेशन्स के अंदर डिजीजेस चलती आ रही हैं। उसके बाद आपका बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट आया केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो यूएस से कॉन्सेप्ट निकला प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का, और कैनेडियंस ने कॉन्सेप्ट निकाला रिस्पॉन्सिबल केयर का। ये 2 कॉन्सेप्ट थे जो वहां से निकले। हम ज्यादा PSN के ऊपर बात करते हैं, तो PSN बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है जिसमें आप बड़ा डिटेल्ड एक केमिकल प्लांट के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर काफ़ी होते हैं, तो आप एक एक एलिमेंट को बड़ा डिटेल में देखते हैं और बड़ा सख्त स्टैंडर्ड है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्टर को भी मैनेज कर रहे होते हैं, सब लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो जो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड है, दैट्स मोस्टली रिलेटेड विद द ऑयल एंड गैस, विद द फर्टिलाइजर, विद द केमिकल प्लांट्स, जिसमें वो ओशा के PSN स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत डिटेल प्रोसीजर्स होते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस एनालिसिस भी किए जाते हैं, जैसे एक हैज़ॉप स्टडी एक एडवांस एनालिसिस है जिसमें आप एक एक वेरिएशन को प्लांट की चेक कर रहे होते हैं। सारी टीम बैठ के 15-20 दिन बैठ के एनालिसिस करती है। हमने भी रिसेंटली किया है OGDCL के साथ।
तो ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट था ऑयल एंड गैस का, प्रोसेस सेफ्टी का, और ये बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी से भी रिलेट होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली के इलेक्ट्रिक ने, एक बिल्कुल पहला यूनिक इनिशिएटिव है कि उन सारे PSM कॉन्सेप्ट्स को के इलेक्ट्रिक अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई कर रहा है, केमिकल इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि आप अपनी सेफ्टी को, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेफ्टी है, आप उस लेवल पे लेके जाएं, ठीक है। सो ऑल दो बहुत टाइम लगेगा उसमें वो डुपॉन्ट के साथ भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी काम कर रहे हैं, और इदारों के साथ भी काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी काम कर रहे हैं, बट एटलीस्ट दैट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव, ठीक है। तो वो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है आपकी प्रोसेस सेफ्टी। तो आपका एजुकेशन केमिकल में है, किस चीज़ में? पेट्रोलियम में है। तो आपको तो करनी चाहिए, प्रोसेस सेफ्टी की भी ट्रेनिंग करें, हैज़ॉप की भी ट्रेनिंग करें, और जहाँ मौका मिले, कभी इत्तेफाक हुआ है हैज़ॉप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का, तो वो इंशाल्लाह वो है पूरा सिलसिला, उसमें फिर इंशाल्लाह आप अलग से भी डिस्कस कीजिएगा। पाकिस्तान में सर कोई इंस्टीट्यूट इसकी ट्रेडिशन हो रही हम करवा रहे हैं सर, हम करवाते हैं, हम इसकी कंसल्टेंसी भी दे रहे होते हैं, सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। जी सर, और कुछ? ठीक है सर, गो टू यू सर। ये इसको साइन कर दें प्लीज। मैं से करेक्ट कर रहा इसको साइन कर दें। इतनी देर सर आप या डॉक्टर साहब कोई पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं? नहीं, बस रिकॉर्डिंग